So good morning friends, welcome to Equity Education. I am Suhas Futwala again meeting you for question answer session. And आज मैंने कोई इतना बड़ा presentation कुछ बनाया ही नहीं because your questions would be my presentation. So it's a question answer session. I am Suhas Futwala. Today Sunday, would love to meet you on Sunday. And duration of the session will be 1 hour till last question. Don't worry, I will not leave the session जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होते. And basic, anything you can ask me, I will try on my level best to solve all your queries. पता होगा तो I will discuss with you. नहीं पता होगा तो I will definitely revert you soon. Fundamental, technical, and portfolio building is a major topic we would like to cover today. So I'm Suhas Futwala in equity market since 2005. I'm NSM certified research analyst, MP certified mutual fund advisor. I'm a professional trader, long-term investor, and intraday is my passion. Mentoring trader is my passion. I'm a sub-broker of Motilal Oswal. Most welcome to be associated with me to learn technical, fundamental analysis, demat account opening, or a portfolio building. My mobile number is 9727783339. So let's talk about my mentoring career. Already 190 plus 10 students already in my WhatsApp group since last 4 years. 21 batch I have already completed. 22nd batch tomorrow I am going to start. Did more than 25 plus educational webinar or learning video available on YouTube. You can access it. Every last Sunday of the month student webinar रहता है जिसमें student के साथ में healthy discussion होता है regarding the query or what can we do better to improve our trading style and improve our profits. Every month one educational webinar रहता है for newbies जो मैं अभी आपके साथ already कर रहा हूँ. So develop my own magnet theory to deal with the market. मेरा trading हो investment हो, basically I am more dependent on this magnet theory. So most welcome to be independent trader. So let's start with Nifty. Nifty is my first priority. Whether I am a intraday trader or professional trader, Nifty से ही मैं शुरुआत करता हूँ और पूरे दिन में Nifty में पड़ा रहता हूँ. If you ask me any time on Nifty, it will be immediately response from my side because मैं पूरे दिन Nifty में ही रहता हूँ. So let's start with the Nifty. तो अभी आप देखेंगे Nifty is some about little bit downtrend on a daily time frame. This is a chart of Nifty daily time frame. Okay. So let's go to weekly time frame. Nifty is forming a pattern like bullish harami. जिन लोगों को price action पता है, they know this is a bullish harami time pattern. But generally such a patterns require a good downtrend. But when we are dealing with a very important index like Nifty or Bank Nifty, ऐसी patterns को हम ignore नहीं कर सकते. Even in a smaller scale, ये बहुत छोटा downtrend है. But overall trend is very good up, तो हम इसको very bullish sentiment consider कर सकते हैं for upcoming days. And remember, weekly is one of the important time frame to do a positional trading also. So this pattern is known as bullish harami, जहाँ stock और index gap up होता है and within the range of the previous candle उसके अंदर ही समा जाता है. इसको बोलते हैं bullish harami. So say that positive sentiments are there on a weekly. Let's check on monthly. देखो sir, beauty of the technical I am showing to you sir. Monthly time frame, monthly high low बहुत important होता है. तो see how smartly monthly time frame is working. सही है sir? उसी को रजिस्ट कर रहा है the level of the 6 month back, 7 month back, the high was 11,433, almost उसी के आसपास ही सर वो रजिस्ट कर रहा है और क्लोजिंग नहीं दे पा रहा सर. दिस इज इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम. तो जब तक सर इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं देगा, इट विल स्ट्रगल यू टू गो अपसाइड. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग एज ऑफ नाउ इन अ मार्केट. तो जनरली सर अगर इंडेक्स को डील करना हो या स्टॉक को डील करना हो, ऑलवेज डील विद मिनिमम 3 टाइम फ्रेम्स. बराबर है सर? बेटा, उसका पापा और दादा, 3 टाइम फ्रेम को साथ में लेके चलोगे
it will give you a clear picture of the market. अभी we are seeing कि जब तक निफ्टी 11,400 के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, it will be sustaining like anything जो पिछले 3 महीने से सस्टेन कर रहा है. 11,400 is a major resistance as of now in Nifty. Now you come to know कि 11,400 के ऊपर मार्केट क्यों नहीं टिक रहा. Reason is the monthly candle of the March of the corona pandemic fall, and all are within it. उसके अंदर ही सब काम हो रहा है. So we want monthly closing for another bull ride above 11,500. This is a monthly. Again back to the weekly. वीकली के ऊपर अगेन पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बट हमको पता है कि 11,400 के ऊपर हमको मंथली क्लोजिंग चाहिए फॉर अनदर बुल राइड. बट वीकली में तो हम यहाँ तक काम कर सकते हैं अबव द हाई ऑफ द लास्ट वीक, दैट इज 11,428. नाउ कम टू द डेली कैंडल. तो दिस इज डेली. अभी इधर सर मुझे ना कोई क्लियर सपोर्ट दिख रहा है, कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है. कैन एनीवन से कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर है सर? अभी एक ये रेजिस्टेंस है. तो जब भी सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना क्लियर ना हो, आई वुड लव टू फोकस ऑन अ फिबोनाची, राइट सर. तो देखो फिबोनाची जनरली यूज टू बी पुट ऑन अ लास्ट लेग. तो देखो जब पीक होता है ना, आई लव टू पुट फिबोनाची ऑन लास्ट लेग, एंड यू कैन से डॉट 11,400 लेवल आई एम गेटिंग ऑन अ 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट. तो वही रेजिस्टेंस है. तो अनलेस एंड अनटिल जब तक फ्राइडे हाई के ऊपर नहीं जाता, आई एम लुकिंग फॉर बेयर इन दिस मार्केट. फ्राइडे हाई के ऊपर जाता है, देन आई एम लुकिंग फॉर अ बुल इन दिस मार्केट. दिस इज माय एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट वीक, राइट सर. और फ्राइडे लो के नीचे जाता है, देन आई एम लुकिंग फॉर अ गैप फिलिंग ऑफ द फ्राइडे. सिंपली, राइट सर. So no one knows, no one get the top and bottom of the market. But if you are ready with your levels and strategy, you will trade like anything, whether you are intraday trader or positional trader. So simply action plan, I am ready with my next week trading execution. मैं इसी तरह से ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन करने वाला हूँ अबव फ्राइडे ले. और फ्राइडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ द वीक, जहाँ वीक खत्म होता है. एक्चुअली इट वाज अ थर्सडे बिकॉज ऑफ फ्राइडे वाज द हॉलीडे. तो थर्सडे हमारा लास्ट वीक का लास्ट डे था. इट वुड बी ऑलवेज एज अ बेंचमार्क, क्योंकि जितने भी पोजीशनल ट्रेडर होते थे डोंट यूज टू कैरी सच अ पोजीशन ऑफ द वीकेंड, जब तक लॉन्ग वीकेंड हो ऐसा. तो सर फ्राइडे के लेवल्स कभी मिस मत करो, वेदर यू आर इंट्राडे ट्रेडर और पोजीशनल ट्रेडर. और मंडे कभी मत मिस करो, क्योंकि फ्राइडे का जो लेवल है दैट वुड वर्क लाइक एनीथिंग बेंचमार्क लेवल फॉर अ मंडे ट्रेडिंग. बराबर है सर. तो इज अ निफ्टी फ्रॉम माय साइड. लेट्स गेट बैक टू हिज बैंक निफ्टी. अभी बैंक निफ्टी में भी देयर इज नो क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हियर. देयर इज नो क्लियर, कंप्लीट डाउनफॉल इज हियर. बैंक निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग एज निफ्टी इज परफॉर्मिंग. आप लोग देख पाएंगे बैंक निफ्टी स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड. तो इधर भी अब हम फिबोनाची यूज कर सकते हैं. देन आई विल गेट क्लियर डॉट हाई ऑफ द फिबोनाची on Thursday high, है ना सर. And I used to focus only on two Fibonacci retracement, that is a 38.2 and 61.8. Simple rules is there. There are so many Fibonacci retracement. अगर मैं सभी चीजों को चार्ट्स के ऊपर डालूंगा, I can't trade. तो simply I focus on a golden Fibonacci retracement, that is 38.2 and 61.8. And you can see dot I am getting the level of 22249, means 22250 would be a benchmark to trade for me on a Monday in Bank Nifty, right? So these are from my side, Nifty and Bank Nifty. Any confusion from anyone? कोई confusion हो, कोई doubt हो, you can ask me. और आज मैंने कोई presentation नहीं बनाया. Your question, your query would work me as a presentation of the today. Okay friends, these are from my side. What can be action plan for a Nifty and Bank Nifty from the Monday is the benchmark of the Thursday levels. So let's get back to my presentation, sir. I have covered Nifty. So please clear your doubts. You can ask me anything regarding the technical, fundamental, or any portfolio building questions. You are most welcome to ask me. Sir, good morning. Sachin this side. Relax.
मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ सर, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस सेशन जब तक कोई भी सवाल खत्म ना हो। राइट सर? सर हाँ मेरा बोलिए। एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे यस, लिए, ठीक यस। है। लेकिन सर एक चीज़ मुझे जानना होता है, मान लो हम वीकली को देख के ट्रेड करते हैं या वीकली को देख के समझते हैं, तो हाँ, जब तक वीक पूरा नहीं हो जाता तब तक वो कैंडल अधूरी रहती है लास्ट वाली, राइट सर। ठीक है। तो अभी आप क्या हेलो। करेंगे? हाँ, तो सर मैं वो जानना चाहता हूँ, मान लो हमने सपोज करो फ्राइडे का लेवल्स देख लिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम अपनी मतलब चार्ट को देख के स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, जो भी होगा। हाँ, तो सपोज करो पहले 2 दिन हमें वो अप दिखाता है, लेकिन लास्ट के 3 डेज में वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो हाँ, उस चीज में क्या किया जाए सर, मतलब वो चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि उस चीज में हम कैसे देखें, क्योंकि वीकली चार्ट हम देखते हैं तो हमें वो सेंटीमेंट्स अप लग रहे होते हैं, यस। लेकिन लास्ट के 3 डेज में वो नीचे आ जाता है। तो उस चीज में कैसे किया जाए फिर? गो फॉर डेली टाइम फ्रेम सर, ऑलवेज वर्क विथ 3 टाइम फ्रेम। और सर समझ लो, प्रीवियस वीक वुड वर्क एज अ बेंचमार्क। अगर इस वीक में मुझे काम करना है तो ये मेरा बेंचमार्क हो गया है ना सर, लास्ट वीक। बराबर है सर? हेलो। जब तक कैंडल खत्म ना हो उसको ऊपर इतना ट्रस्ट मत करो, वॉट एवर द टाइम फ्रेम, वेदर यू आर यूजिंग 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वीकली, डेली, मंथली, ईयरली। जब तक ओके। वो कैंडल खत्म ना हो जाए उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो। जब खत्म हो जाए देन यू कैन ट्रेड ऑन इट ऑन अ बेंचमार्क। अभी सिंपल है, यू आर कंफ्यूज इन लास्ट वीक ना सर? यस सर। क्यों? क्यों कंफ्यूजन था? आपके सामने है सर। बिल्कुल सर, उससे ऊपर भी नहीं है, उसके मिड में ही जाया सब, उसके बीच में ही ट्रेड हो रहा है सब कुछ। मीन्स व्हाट मार्केट इज डूइंग, ना लास्ट वीक से ज्यादा काम कर रहा है ना हम्म, लास्ट वीक से कम काम कर रहा है। इस हम्म। मार्केट खुद कंफ्यूजन में है तो आपको कंफ्यूज करेगा। सो बिल्कुल सर। इट्स नॉट मैंडेटरी टू वर्क। अभी सर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन लास्ट स्टूडेंट सेशन कि सर इस वीक में मार्केट पूरा कंफ्यूजन में ही रहेगा। दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम, देयर इज नो बिग मूवमेंट एंड इनसाइड द प्रीवियस बिग मूवमेंट, और ज्यादातर मूवमेंट उसने गैप अप करके ही खा ली। मींस ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे के लिए कुछ बचा ही नहीं। हियर ऑलरेडी इंडिकेटेड विद द, ये इस पैटर्न को क्या कहते हैं सर? इफ एनीवन नो प्राइस एक्शन, व्हिच पैटर्न इज दिस? One white soldier, sir. इट्स अ वन वाइट सोल्जर, दिस इज अ बुलिश पैटर्न। मींस यहां बाय कॉल वाज जनरेटेड व्हेन दिस पैटर्न वाज हैपनिंग ऑन 25 सितंबर। राइट सर? तो उसके ऊपर बाई था विद अ हार्डली स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो, जो मैंने अपने एक पूरे वीडियो में समझा है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। हर जो 12 पैटर्न है ना, 12 की 12 पैटर्न मैंने समझाई है, उसी में एक पैटर्न है इज अ वन वाइट सोल्जर, और आप इसके ऊपर कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन डेली टाइम। राइट सर? क्लियर, क्लियर सर, क्लियर। वीकली कंफ्यूज कर रहा है, उसका पापा कंफ्यूज कर रहा है ना, तो उसके बेटे से मिलो। बराबर है सर? इट विल गिव यू आइडिया कि क्या हो सकता है ऑन अ स्मॉलर टाइम। क्लियर, क्लियर सर, थैंक यू। Any other question from anyone? Hello, welcome all. There are so many join. Welcome Gorak ji. Harish ji, आपका सवाल क्या था? What's your question? You asked me about something about the portfolio. Hello. नहीं, मेरे को लिंक नहीं हो रहा था, लग गया वो लिंक नहीं हो रहा था, अभी लिंक हो गया। क्या लिंक नहीं हो रहा था सर? निफ्टी ट्रेडिंग। हेलो, वेलकम कौशल जी, फानी जी, सचिन जी, और सत्येंद्र जी, सुनील जी। सुहास जी, फनी कुमार हियर। हाँ फानी जी बोलिए सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मुझे ये पूछना था कि भाई इफ यू गो फॉर स्टॉक्स एंड वांट टू ट्रेड इन कैश फॉर नेक्स्ट डे, हाउ टू सर्च फॉर दो स्टॉक्स? मतलब कैसे ये सर्च करना है? मतलब डेली टाइम फ्रेम में सर्च करना है, वीकली में सर्च करना है? मतलब इफ यू वांट टू सर्च फॉर यू नो हैमर और समथिंग लाइक दैट, तो पहले किस बेसिस से स्टार्ट करके देन स्टडी करना है? मतलब पहले मंथली से स्टार्ट करना है या
वीकली से स्टार्ट करना है. वीकली, अगर वीकली में हैमर देखा है, then can we check whether we can trade or not? How to select and how, Yes, got your ये point. बड़ा क्वेश्चन है. How to select the entry and exit points also. Yes. So Fani ji, first of all, when you are an intraday trader, आपको डेली के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, एसोसिएट विद द 1 hour टाइम फ्रेम, राइट सर. इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, डेली की टाइम फ्रेम देखो सर. सिंपल थिंग इज दैट इधर वन वाइट सोल्जर बना था विच इज अ बुलिश पैटर्न, तो इसके हाई के ऊपर बाय था बेस्ड ऑन 15 मिनट एंड 1 hour यू कैन डेली हियर सर. इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर यू कैन फोकस ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम. और अगर आप स्कैल्पर हो, बहुत छोटे छोटे ट्रेड करते हो लाइक 20-30 पॉइंट्स, यू कैन गो फॉर 5 मिनट टाइम फ्रेम अबव दिस हाई. Or you are a positional trader, you can buy above this level, as this is a high of this pattern, this is a border of this pattern. तो इसके हाई के ऊपर हमको बुलिश सेंटीमेंट देखना है, बिकॉज दिस इज वन टाइप ऑफ रिवर्सल पैटर्न. तो इसके हाई के ऊपर मैं बुल साइड देखूंगा, देन आई विल गो अहेड. और आपको जानते हैं मैं पूरे दिन से निफ्टी में पड़ा रहता हूँ. मीन्स आई एम स्कैनिंग स्टॉक जस्ट फॉर यू, स्टूडेंट्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, और जो फॉलो करते हैं उनके लिए मैं स्टॉक स्कैन करता हूँ. आई यूज टू ट्रेड होल डे इन निफ्टी विद डिफरेंट टाइम फ्रेम. तो मुझे तो निफ्टी जो भी मिलता है मैं ट्रेड करता हूँ विद अ बेयर और बुल. और आपका सवाल ये था कि हाउ आई स्कैन डेली स्टॉक. तो जस्ट गो फॉर रिवर्सल पैटर्न लाइक दिस. वन वाइट सोल्जर है. अभी देखो निफ्टी में मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊं, दिस वन टाइप ऑफ रिवर्सल पैटर्न, इट्स अ बुलिश हरामी. तो इसके हाई के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं फॉर अ पोजिशनल ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ स्विंग हाई 11,774 समथिंग, राइट सर. बट हियर stop loss is very big, not match with the risk reward ratio. So here I am not going to trade for a positional trade, right sir? क्योंकि अगर मैं यहाँ बाय लेता हूँ मेरा स्टॉप लॉस छोटा है एंड माय टारगेट वुड बी हायर. बट अगर मैं यहाँ बाय लेता हूँ माय स्टॉप लॉस इज वेरी बिग. तो हियर आई एम नॉट सजेस्टिंग टू डील विद पोजिशनल ट्रेड. गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड लाइक 1 or 2 days और इंट्राडे ट्रेड. और उसके लिए अगर मुझे जाना है देन आई विल गो फॉर अ 60 minute टाइम फ्रेम फॉर अ पोजिशनल ट्रेडिंग. This is a 60 minute time frame. You can check this is a reversal level, then you can go for a, it's going upside. अभी हमको ही पता है कि ये पिछले वीक के हाई और लो के बीच में ही है, तो इट विल कंफ्यूज यू. हमको कंफ्यूजन दिख रहा है सर. देयर इज नो क्लियर ट्रेड ना, इट्स अ कंप्लीटली साइडवे. पानी जी, तो एज ऑफ नाउ सेंटिमेंट इज नॉट गुड फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग बिकॉज रेंज इज वेरी नैरो. You can see Nifty 2 दिन अप मूव दिया, then range bound is there. There is no clear. और हम मेरा अगर आपको वेबिनार अटेंड किया तो दिस दरवास बॉक्स ब्रेकआउट. निफ्टी ने यहाँ दरवास बॉक्स बनाया और उसी के ऊपर बाउंस देके गया. बट देयर इज नो स्ट्रेंथ इन द मार्केट. अभी भी स्लोली जा रहा है सर. Why? Because this is a resistance on a daily time frame of the Fibonacci. तो उसके ऊपर उसको जाने में दिक्कत हो रही है, राइट सर? 11,400 और 11,400 इज अ रेजिस्टेंस ऑन मंथली आल्सो. वही है ना सर? तो जब तक ये बैरियर पार नहीं करेगा हमको मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं देगा. व्हाट इट सर? डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करिए फॉर मैक्सिमम. एक दिन की पूरी कैंडल हमको ज्यादा आइडिया देती है कि कल कौन सा पकड़ना है. एंड यू कैन फोकस ऑन ऑल द 12 पैटर्न्स. और अगर समझ लीजिए ये डेली टाइम फ्रेम है एंड हियर रिवर्सल पॉइंट पैटर्न मिल रहा है लाइक वन वाइट सोल्जर, और समझ लीजिए वही कोई प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो इट विल वर्क बेटर देन इंडिपेंडेंट पैटर्न. अगर मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ कि दिस इज अ रिवर्सल हियर और यही मुझे कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा है लाइक दिस आर रेजिस्टेंस, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है ना कि रैंडमली आप पकड़ो.
randomly if you pick it ना, अभी देखो सर here also reversal ना, ये reversal था, one white soldier ही था सर, it was a support is equal to resistance, है ना सर? Yeah. What 10,930 आपको पता है, it's a one of the crucial level of the nifty, जो मैं 3-4 साल से बोल रहा हूँ, 10,930 is a one of the crucial level of the nifty. जब भी उसके ऊपर सस्टेन होगा then it will reward like anything. ये देखिए 10,930 का लेवल, इस लेवल को मार्क कर लो, 10,930 जब भी आएगा ना, it will give you a good trade. देख लीजिए हिस्ट्री सर, 10,930 के ऊपर, here we work like anything intraday. 10,930 का लेवल देखिए सर, 10,930, 10,930 है strong support. Here strong support crashed and gone. Here strong support bounce back. Here working as a strong resistance, 10,930, 10,930. Here zigzag, and here we did intraday trade like anything 10 on 10,930. Here again collapse, 10,930. Here again reverse, and again same reversal of the 10,930, and again 10,930. सर इधर क्लोजिंग दिया बट सेल की एंट्री नहीं दी, इधर भी क्लोजिंग दिया, सेल की एंट्री नहीं दी, बिकॉज 10,930 is a reversal level. And again we are seeing live highlighted. लाइव में पूरे डील में डालता हूँ कि 10,930 आया है भाई, देख लो, इवन इन टेलीग्राम ऑल्सो 10,930 is a reversal level. Got it फानी जी? Yeah, very good. और सर एक बात बोलूं सर, you don't need to scan all the stock daily. सच बोल रहा हूँ सर, मैं पूरे दिन निफ्टी में काम करता हूँ, मुझे अभी तक दिक्कत नहीं आई, मुझे 1-2 ट्रेड मिल ही जाते हैं सर आराम से. यू हैव टू डील विद द, आप किसी एक कस्टमर के साथ कंटिन्यूअसली फॉलोअप लोगे तो आप उसके फीचर्स सही तरह से जान पाओगे. यू डोंट नीड टू ट्रैक सो मेनी स्टॉक, एक स्टॉक काफी है. मेरा एक स्टूडेंट है, वो पूरे दिन सर अशोक लीलैंड में ही काम करता है. एक है वो पूरे दिन गोल्ड में काम करता है, कोई क्रूड में काम करता है, एंड दे आर गेटिंग एक्सीलेंट रिजल्ट, क्योंकि आप हर उसके मूव के साथ सेट हो जाते हो, लाइक आई एम डूइंग इन निफ्टी. राइट सर? इसी के साथ साथ एक स्टॉक बताइए जिसके साथ हम जुड़ सकते हैं. वो डिपेंड ऑन यू सर. देखो मेरा बिहेवियर, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल निफ्टी के साथ सेट हो रहा है, बैंक निफ्टी के साथ सेट नहीं हो रहा. मैं बैंक निफ्टी को चीटर कहता हूँ, चीटर. हाँ सर, doesn't mean it's a cheater for you, it's cheater for me, it's not matching with my trading style. बराबर है सर. तो मैं निफ्टी में काम कर, अभी देखो निफ्टी मुझे 10,930 से डॉट लेवल मिलते हैं, जो मुझे बैंक निफ्टी में नहीं मिलते, वहां मुझे वॉलेटिलिटी मिलती है. बराबर है सर. तो आई वुड बी मोर हैप्पी विद द निफ्टी. और अगर आपको किसी एक चीज के ऊपर काम करना है, देन इट्स निफ्टी. सेकंड, यू कैन चूज रिलायंस. राइट सर? It's a good trading stock for a positional also, intraday also, scalping also, anything you can do with the Reliance also. और it's depend on, और सर आपका जो है ना कि भाई मुझे इसी स्टॉक में काम करना है, वो बाय चॉइस नहीं होगा, बाय फोर्स नहीं होगा, बाय प्रैक्टिस होगा. आप जैसे जैसे काम करते जाओगे, you will be familiar with the stock, कि चलो भाई मुझे इसमें ही काम करना है, क्योंकि वो मुझे समझ में आता है सर. ऐसा कोई बिजनेस नहीं करूंगा जो मुझे समझ में नहीं आता. तो आप जो मैं हर रोज स्टॉक स्कैन करूं, मैं वो प्रैक्टिस नहीं करता, सच बोल रहा हूँ. ना ही सजेस्ट करता हूँ कि हर रोज स्टॉक स्कैन करो और इसके ऊपर काम करो. आई एम नॉट डूइंग दैट. मैं 1 या 2 के पीछे पड़ा रहता हूँ, एंड कीप प्रैक्टिस ऑन इट लाइक एनीथिंग. राइट सर? Yeah, correct. I just want to ask a view about this Britannia. I've been observing since 2200, जब से वो मार्च से नीचे गया है. तो ये लग रहा है कि is it on a breakout or what is it like? You can see still it's sustaining above my line of the breakout. Right sir? Yeah. तो इसके ऊपर sustain होगा, then I will look. अभी देखो lines it can be different from person to person. तो देखो actually I'm very satisfied with this stock because हमारे पोर्टफोलियो में आपने डाला है 2 से वो 4 अपने आप हो गया. एनसीडी भी मिला जो भी है. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट.
So I am just asking, can I invest more in this Yes. now also, or what is it like? So Should Britain I is a wait? good stock to be invested, ना सर. Hmm. और दूसरा मुझे लग रहा है अच्छा स्टॉक इन FMCG बास्केट, दैट इज अ टाटा कंज्यूमर, राइट सर. Yeah. As of now it's a base stock as of now to add from FMCG basket, right Okay. sir. Yeah. Okay. Hindustan Unilever भी अच्छा है, Marico भी अच्छा है, but still I am looking good potential in this stock Tata Consumer. Marico I am looking little bit Okay. undervalued, जो चला नहीं है इतना. ये देखिए सर, इतना नहीं चला सर, राइट. Okay. तो मुझे Marico भी अच्छा लगता है. Another is Bajaj Consumer, one of the undervalued stock in FMCG, जो चला ही नहीं. Okay. देखो सर अभी बॉटम पे है सर, है ना. Yeah. हाँ. And in oil business he is the biggest contributor. Bajaj Almond Drops and Which all. one? Oil business, hair oil business. He is a leader. Hair oil business, hair oil. Bajaj Almond Bajaj? Drops and Bajaj Consumer. Bajaj Consumer. Okay. I am saying this is a value stock which available at the undervalued price. Value stock means जहाँ potential है but मुझे सस्ते में मिल रहा है. तो ये वो stock है, right sir. If you compare with the price to earning ratio, PE भी इसका बहुत down है as compared to industry PE and other stocks also. Yeah. तो अगर patience है then you can go for this stock also. Otherwise भागते हुए बूढ़े तो आपके पास है ही, like Britannia. या वो तो मैंने आपको बोला है, कभी बेचने वाला नहीं हूँ, बट वही है, जब नीचे आएगा तो थोड़ा सा एवरेज करूंगा या समथिंग लाइक दैट देख रहे हैं. या ओके सर, फाइन. टेक्निकल एंड फंडामेंटल बोथ वेरी सॉलिड. या फाइन, बट दूसरा बेसिकली अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में ये जो मोतीलाल में अगर करना है थोड़ा सा, आर देयर एनी एजुकेशनल वीडियोस हाउ टू ये छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड. आपको कैसे ऑपरेट करना वो ही ना. हाउ टू ऑपरेट बेसिकली, स्टॉप लॉस कैसे रखना है. आई विल सेंड यू, डोंट वरी. आई हैव पर्सनली मेड इट और मैं आपको सेंड करता हूँ, डोंट वरी. ओके राइट सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. राइट, थैंक यू. गुड डे. गुड डे सर. Any other questions? Welcome Ritesh ji, Chinmay ji, Gautam ji, Harish ji. There are many new faces. Satyendra ji. Any other question from anyone? Right sir, and feel free to ask me. Don't be hesitated. कोई इधर military नहीं चल रही. You can ask me anything. I will try on my level best to solve your queries. Or it may give you new idea also. जैसे बजाज कंज्यूमर. हाँ बोलिए सर. सर मॉनिटोरियम का क्या इफेक्ट होगा बैंक निफ्टी में मंडे को? मॉनिटोरियम देखो, अगर ये होगा तो बैंक निफ्टी को इतना फायदा नहीं है ना. हाँ, नुकसान ही है. और आप देख भी रहे हो सर, बैंक निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू निफ्टी. अभी देखो सर, मैं आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है. देखो सर, बराबर है सर. बैंक निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग, वो अभी भी नीचे है. और अगर निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ तो इट विल परफॉर्म लाइक एनीथिंग, है ना सर. निफ्टी यहाँ से यहाँ पहुंच गया सर. ऑलमोस्ट 52 वीक जो हाई था उसका 12,400, उससे सिर्फ 1000 पॉइंट नीचे है. और बैंक निफ्टी उसके हाई से कितने पॉइंट्स नीचे है सर? ऑलमोस्ट 7,000 7,000 पॉइंट. 7,000 पॉइंट मीन इट्स अंडर परफॉर्म. और रीजन पता है सर, इकोनॉमी नहीं चलेगी अभी तक, ये लॉकडाउन है. लेकिन एक बात समझ लो सर, फर्स्ट इंडिकेटर टू रन इकोनॉमी इज बैंक्स. इकोनॉमी चलती है जब चीजें सब ओपन होगी आफ्टर लॉकडाउन एंड ऑल दिस थिंग. सबसे पहले बैंक्स वुड बी बेनिफिटेड. सेकंड इज द ऑटो वुड बी बेनिफिटेड, राइट सर? यस सर. और अभी हम ऑटो में स्पाइक देख रहे हैं. डजंट मीन कि भाई ऑटो ज्यादा चल नहीं सर. प्रीवियस कुछ बिका ही नहीं तो अभी के डेटा पॉजिटिव ही दिखने वाले हैं सर. तो दीज आर द टू मेजर इंडिकेटर टू डील विद द इकोनॉमी. बैंक्स में अभी भी प्रेशर है, मींस स्टिल इकोनॉमी स्ट्रगलिंग. और ऑटो में थोड़ा पुलबैक आया है, बराबर है सर. यस सर.
तो बैंक, आपका सवाल क्या था सर? बैंक निफ्टी के मॉनिटरिंग। बस सर एक बात बोलूं सर, कई बार चीजें क्या होती है सर, आप सोचोगे मॉनिटरियम से बैंक निफ्टी को नुकसान है, बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, आप सोचोगे इससे बैंक निफ्टी को फायदा है, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा सर। बट मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इज रन बाय स्मार्ट मनी। वो चाहता है, स्मार्ट मनी चाहता है कि हम ऐसा सोचे जिससे उनको फायदा हो। तो ऑलवेज फोकस ऑन चार्ट्स, चार्ट्स के ऊपर फोकस करें, इट विल गिव यू क्लियर आइडिया। हमने देखा था सर कि कई बार रिजल्ट अच्छा नहीं आता किसी स्टॉक का, बराबर है सर, फिर भी स्टॉक जी। ऊपर जाता है। रिजल्ट बुरा आता है फिर भी स्टॉक नीचे जाता है सर, क्यों? बिकॉज मार्केट इज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटेड बाय स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी नाम ही उसी को दिया हुआ है जो स्मार्ट है। एंड स्मार्ट मनी इंक्लूडिंग व्हाट? FII, DII, mutual funds, EPFO, LIC. These are the smart money and they are here to make profit, not a charity. Yes, sir. आप सोचोगे कि मॉनिटरियम है इसलिए मार्केट बैंक निफ्टी गिरना चाहिए, मॉनिटरियम में ऐसा हुआ इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, तो वो सिर्फ आपको दिखा रहा है कि बादल छाए हुए हैं सर, बारिश होगी कि नहीं होगी वो तो चार्ट ही बताएगा सर, राइट सर? I understood. ऑलवेज रेडी विथ योर बैकअप प्लान कि भाई ऐसा हो। सभी देखो सर, क्रूड इतना नीचे आया, बराबर है सर, तो विच आर द मेजर बेनिफिशियरीज? हाँ हेलो, पेंट स्टॉक, केमिकल पेंट स्टॉक। हाँ, तो देखो सर वो ऊपर जाने चाहिए बट अभी भी वो उतने ऊपर नहीं जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉल ऑफ द क्रूड। बट क्रूड का दूसरा एडवांटेज क्या है सर? ज्यादातर रॉ मटेरियल होगा केमिकल का, वो सबका, वो तो भी केमिकल सेक्टर उसका फायदा उठा रहा है सर। Yes, sir. अब देखो सब केमिकल स्टॉक अच्छे चल रहे हैं सर, राइट सर? इवन Yes, yes. फार्मा का जो फॉर्मुलेशन है, API का कंसेप्ट है, वहां भी रॉ मटेरियल होता है। तो बेसिक रॉ मटेरियल इज मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम क्रूड फॉर एनी इंडस्ट्री, राइट सर? प्लास्टिक हो, केमिकल हो, राइट सर? Yes, sir. सभी को फायदा होने वाला है। बट दिस जस्ट क्रिएटिंग द क्लाउड्स के बादल छाए हुए, बारिश होगी कि नहीं होगी वो तो वो स्टॉक का चार्ट ही बताएगा। तो जस्ट बी रेडी विथ योर बैकअप। गॉट इट सर? Yes, sir. Thank you. आप सोचोगे यार कि RBI की पॉलिसी आने वाली है, इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा। बट सर जस्ट फोकस ऑन चार्ट्स। ये सब Yes, sir. चीजों से हम डील नहीं कर पाते क्योंकि इट्स वन टाइप ऑफ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट कि इंटरेस्ट रेट में ऐसा होगा, क्रूड में ऐसा होगा, डॉलर में ऐसा होगा, तो चीजें होगी। बट इट्स अ फंडामेंटल एस्पेक्ट, इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट, वेरी ब्रॉड। समटाइम्स वी कांट डील विथ इट। तो नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस का इन्वेंशन हुआ जिससे हम मार्केट को डील कर पाए विद द प्राइस एक्शन, राइट सर? Okay, sir. तो फोकस ऑन चार्ट्स एंड चार्ट्स, Okay, sir. राइट सर? हाँ बोलिए कौशल जी, योर क्वेश्चन सर। Yeah, my question is for medium term. यस सर। Suppose we have purchased REC, ITC, यस and it has moved up. यस So, but suddenly they started downtrend. So, what are the indicators which shows that now you have downtrend? You should sell it, and again you can purchase in the bottom. yes sir. ITC, right sir? ITC is one of the non-performing stock of the market. Means sir इसको हम ज्यादातर सेल साइड देखेंगे तो ज्यादा एडवांटेज होगा सर, बराबर है सर? और इफ यू आर हैविंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया तो देखिए सर, अगर समझ लो आपने यहाँ बाय किया जहां मैंने खुद सजेस्ट किया था, राइट सर? इट्स अ पैटर्न लाइक वन वाइट सोल्जर और ऑलमोस्ट ट्वीजर बॉटम, डे वन क्लोजिंग यहाँ मैंने सजेस्ट किया था फॉर अ बाइंग। तो उसका टारगेट होता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, राइट सर? तो इट्स ऑलरेडी डन, तो यहाँ हमको बुक करना होता है सर। सिमिलरली अगेन हियर बुकिंग था सर, राइट सर? और अगर मैं यहाँ का मूव बाय की साइड लूं आफ्टर रिट्रेसमेंट, आफ्टर डबल बॉटम, तो उसका टारगेट आता है ये,
So it's already done that way. So next support and next suggestion would be always profit booking point of the market. Right, Kaushal ji? So means you see on this candle chart, the indicator of this MCAD, MACD, MACD, yes sir, MACD. RSI. You don't see these indicators. I rarely see, huh, sir? Okay. I rarely see because price says me everything. Mm-hmm. भाव भगवान है सर. इंडिकेटर यूज कर सकते, दे आर वर्किंग लाइक अ सपोर्टिंग एक्टर. कोई मूवी होता है सर, उसमें हीरो और हीरोइन ही मेजर रोल है, बाकी कोई कॉमेडियन होगा, जॉनी लीवर होगा, शक्ति कपूर, दे आर वर्किंग एज अ सपोर्टिंग एक्टर. मेन हीरो हीरोइन है प्राइस एक्शन, भाव भगवान है सर. You can use a supporting actor, MACD, RSI, stochastic, ADX you can use. But again, decision comes majorly should be with the price action. Right, Sanjay? Okay. Any other question? And don't, Fani Kumar ji. Yes, your question is that, Suraj, there is a buzz going on blockchain technology in foreign market with increase of 275% in the next 10 years. Do we have such a stock in India? No idea, sir. It's completely out of the box, out of the thought. मेरा कोई इसमें कोई नो, I have zero knowledge in this blockchain technologies. और सर सिंपल थिंग इज दैट फानी जी, अगर जिस बिजनेस में समझ में नहीं आता ना सर, वहाँ काम नहीं करना चाहिए. मुझे सर बिटकॉइन कभी समझ में नहीं आया, मुझे ये सब टेक्नोलॉजी कभी समझ में नहीं आई, तो मैं उसमें डील ही नहीं करता. आई अंडरस्टैंड निफ्टी बेटर, आई अंडरस्टैंड बेटर. That is correct. Basically, this blockchain technology is basically Bitcoin is based on this, but Bitcoin के अलावा अभी now many banks, Fidelity Investments, many people are changing to blockchain technology because जो डेटा जो एक बार सेव होता है और उसके बाद जो ट्रेस हो सकता है, जैसे हमारे बैंक ट्रांजैक्शंस में अभी बहुत कुछ फ्रॉड होता है. एक बार पैसा चला गया तो जब भी फ्रॉड होता है मिल नहीं सकता करके साइबर क्राइम वाले बोल देते हैं. Because many of my either my students or somebody, they students means not share market students, my students. Yeah. So they when they complain, we went to cyber cell and all, but we didn't get much of this thing from the banks. Now many of the foreign banks like Douche, for Wellness Fargo, all are shifting to this blockchain technology to ensure less of fraud, and they are successful. And they are saying this Facebook, Amazon, they are all shifting to this blockchain. One of the successful listing of Amazon is based on blockchain technology. They have got good this thing. Supply chain management has become very good. So this is going to be, this is taken by all this thing, and it is high time our banks also look into this technology because it is cost effective also. It is cost effective, because of which what I feel as a normal consumer in the market is I feel very cheated with the banks. Sometimes they don't give us the advantage of what we should have. So somehow I feel कि they should adopt to this technology. But ये बहुत buzz चल रहा है, and somehow I feel कि our technology का some of the I try to Google it, the Wipro is using some of the blockchain technology, something like that. So ऐसा कुछ अगर identify कर सकते हैं, actually our tech IT companies who are using it, we might actually get this thing, because you are more in the market, and no idea. That's what I am just. Still, I am not. Believe me, your view. Still, I am not convinced with the business model. अच्छा जी, okay. business model. But this technology is going to take over. पहले सिर्फ Bitcoin में था या cryptocurrency में था, but the same blockchain technology is being used everywhere. अगर थोड़ा Google करेंगे तो आ रहा है. Even Facebook, Google, everybody is investing in that right now. Because their costs are reducing because of that, and their efficiency is increasing. So such technologies. Definitely, I'll come back to you. Anything would be there, but हाँ जी. Okay, sure, sir. Thank you. Thank you, sir.
Any other question from anyone? Sir, can you please explain the open interest? Okay, sir, have you attended my last webinar, sir? I already did full day webinar on a writers are always right regarding the open interest. Definitely I will go through it. Okay, what is open interest? सर कोई एक बंदा एक ऑप्शन बाय करता है और दूसरा वो कब बाय कर पाता है? जब वो दूसरा सेल करता है सर. ओके सर. बराबर है सर. मैं अगर 11,400 का सी या पी बाय कर रहा हूँ तो सामने कोई बेचने वाला होगा तभी मैं बाय कर पाऊंगा. यस सर. तो ये डील जब होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट 1. एक ओपन इंटरेस्ट 1. ओके सर. वैसे ही दूसरी कोई डील हुई, राइट सर, और किसी और ने बाय किया दूसरा, मीन्स नई डील हुई, नया 11,200 के ऊपर वापस बाय या सेल हुआ तो दूसरा ऐड हुआ, ओपन इंटरेस्ट 2 हो गया, राइट सर. वैसे किसी और ने दूसरा बाय किया, किसी चौथे ने दूसरा बाय किया तो वापस ऐड हुआ एक और कॉन्ट्रैक्ट, तो वापस 11,200 का ओपन इंटरेस्ट हुआ 3, क्योंकि 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बने बाय और सेल के. बराबर है सर. सो इसी तरह ओपन इंटरेस्ट काउंट होता है. अभी समझ लो किसी के पास कोई पुराना ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, उसने बाय किया. ओके सर. और सामने जिसने सेल किया था वो ऑपोजिट सामने वो डील हो रही है तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कट जाएगा, राइट सर. तो ओपन इंटरेस्ट 1 कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा. गॉट इट सर? यस सर. हाँ, मीन्स नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे मार्केट में तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा और पुराने कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ होंगे तो ओपन इंटरेस्ट कम होगा, राइट सर? जी सर. गॉट इट? एनी अदर कंफ्यूजन इन ओपन इंटरेस्ट? नो सर. नो. और सर समझ लो सर, प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो क्या समझेंगे सर आप? मार्केट इज गेनिंग. मार्केट बुल में है, राइट सर. प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है फॉर द सेम स्ट्राइक प्राइस तो क्या समझेंगे आप सर? मार्केट इज फॉलिंग और गोइंग डाउन. मींस मार्केट का इंटरेस्ट उस लेवल के ऊपर बढ़ रहा है बाय इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट, राइट सर. These are layman terms. I would love to highlight what is open interest. Any confusion in open interest, sir? No, sir. Okay. Any other question, sir? Sir, what about crude? Crude अभी भी सर पेन में ही है सर. It's a crude chart. You can see we encased very good points on Thursday, sir, on lower circuit. Yes, lower circuit and I have posted, sir. मैंने लाइव पोस्ट किया था टेलीग्राम में कि आई एम लुकिंग लोअर सर्किट और लोअर सर्किट डॉट हुआ और फिर बाउंस किया. अगेन यू कैन सी हाँ सर व्हाई आई वाज बेरिश. दिस अ डेली चार्ट सर ऑफ क्रूड. यस सर. लेट्स गो टू वीकली. जैसे ही इसके नीचे गया आई पोस्टेड आई एम लुकिंग फॉर लोअर सर्किट और लोअर सर्किट हुआ सर. सिंपल वही जो मैंने सुबह आप लोगों को दिखाया कि वीकली आर मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल्स टू डील विद द मार्केट, वेदर intraday trader or a positional trader, sir. So I took advantage on Thursday night of the lower circuit. और आप ही देखिए this is a weekly chart. It's gaining like anything. Let's put the Fibonacci whether we get the good levels or not. लो सर वही हुआ ना सर 61.8 के ऊपर वो क्लोज नहीं हो रहा, सस्टेन नहीं हो रहा तो अभी भी सर वो बेयर है सर, राइट? यस सर. तो मुझे नेक्स्ट बुल मोमेंटम के लिए 3200 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए सर. ओके. एज ऑफ नाउ इट्स इन अ पेन एंड साइडवे, पूरा रेंज बाउंड मूव है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. लेट्स चेक ऑन मंथली आल्सो. अगेन बेरिश पैटर्न्स आर देयर सर, राइट सर? क्लियर? Okay sir, clear. So I am not looking for a drastic upside in a crude as of now. It would struggle yet. We need closing above 3200 for another bull ride based on Fibonacci retracements, right? Okay sir. Any other question from anyone? Hello? There are so many new people. Deepak ji, Chinmay ji, Gautam ji, Harish ji, you have already asked me.
Any other questions, sir? And don't type in chat box. Just ask me. Value investing versus growth investing, which you prefer? Hemanji, it's your question. Value investment versus growth investment. Value investment मतलब the stock which are having value, जैसे मैंने अभी दिखाया कि बजाज कॉर्पोरेशन, बजाज कंज्यूमर, ये मुझे वैल्यू इन्वेस्टमेंट दिख रहा है कि उसमें मुझे चीजें, स्टॉक अभी बजाज कंज्यूमर मुझे अभी सस्ता लग रहा है इन द मार्केट इन एफएमसीजी बास्केट, वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक ऑफ फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर, बजाज कंज्यूमर, दिस अ वैल्यू स्टॉक फॉर मी. एंड टाटा कंज्यूमर इट्स अ ग्रोथ स्टॉक फॉर मी. राइट सर. अगर मेरे में पेशेंस ज्यादा है देन आई शुड गो फॉर अ वैल्यू स्टॉक, और लॉन्ग टर्म होराइजन है तो देन वी शुड गो फॉर अ वैल्यू स्टॉक. अगर हमको जल्दी है, मोमेंटम ट्रेड करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है और सेफ भी रहना है कि भाई बहुत नीचे नहीं जाएगा, तो टाटा कंज्यूमर इज गुड फॉर यू सर. राइट हेमंत जी? सेम एग्जांपल सर, ब्लू डर्ट, it was a value stock for me for 2000 level. I have accumulated like anything here, and you can see 3200 plus rewards, value stock. Still it's a value stock. Why? It's still 50% below its peak, 50% more than 50% sir. It's the finest multinational company. हाँ sir, 7800. अभी देखो सर पूरा चैनल ब्रेक आउट हुआ है. You can see why it is rising like anything, because channel breakout. Right हेमंत जी? It's a difference between value stock and growth stock. वैल्यू स्टॉक जिसमें अभी भी वैल्यू है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, सस्ते मिल रहा है. ग्रोथ स्टॉक मतलब जो ऑलरेडी भाग रहा है, इसकी प्राइसिंग लाइक एनीथिंग इन गोदरेज कंज्यूमर. ब्लू डर्ट इज स्टिल वैल्यू स्टॉक फॉर मी. एनी अदर क्वेश्चन? एंड डोंट टाइप इन चैट बॉक्स यार. यू कैन आस्क जी. हाँ बोलिए सर. अगर ये जनरली इतना कॉस्टली है तो हम थोड़ा सा झिझकेंगे. सो अगर मान लीजिए हमने कुछ इन्वेस्ट किया है इसमें, सपोज एनी नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर इन्वेस्ट किया है, तो देन हाउ डू वी हेज दैट पोजीशन, मतलब बाय टेकिंग सम काइंड ऑफ ऑप्शन, बिकॉज इफ यू टेक ओनली इन कैश, अगर मान लो नीचे आ गया तो बहुत दुख लगता है. So how do we calculate the hedge for take an option अगर वो नीचे आ जाता है तो? अगर सर and that even अगर ऊपर जाता है तो अच्छा है, हमको प्राइस मिल रहा है. हाँ, hedging is means what? It's a one type of insurance कि अगर मार्केट नीचे गिरा तो मेरा स्टॉक भी गिर जाएगा. राइट सर. तो उस टाइम तो हम क्या कर सकते हैं सर, पुट कैरी कर सकते हैं. बट अगर इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना, जस्ट फोकस फॉर एक्यूमुलेटिंग ऑन ऑल द डिप्स. हाँ ट्रेडर है देन यू कैन फोकस ऑन हेजिंग. अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक वेबिनार किया था विद सम ऑफ द सीनियर गाय ऑफ द टेक्निकल इंडस्ट्री, तो उन्होंने भी यही बोला कि मार्केट गिर सकता है तो ऑलवेज कैरी पुट. बट मुझे वो स्ट्रेटेजी कुछ सही नहीं लगती, बिलीव मी सर. आई रेयरली हेज द पोजीशन. आई रेयरली, हाँ मैं हेजिंग के ऊपर काम नहीं करता. मैं 1 या 2 ही निफ्टी के ट्रेड लेता हूँ एंड आई एम हैप्पी विद द नेकेड पोजीशन. दिस इज माय स्टाइल ऑफ वर्किंग. अगर आपको सेफ खेलना है तो यू शुड कैरी पुट. राइट सर. टू हेज योर पोजीशन एट द मनी और नियर बाय स्ट्राइक प्राइस. जैसे निफ्टी अभी चल रहा है 11,400, so you can go for 11,200 put and 11,300 put just to hedge your position. Right sir, but I am not suggesting. This is my view. सपोज इसी स्टॉक को ले लें जो आपने खोल रखा है, ब्लू डॉट 3245 अभी है, 3245 अब ले लेंगे, तो व्हाट डू यू सजेस्ट पुट शुड बी टेकन के पहले तो सर which will you know not cost us much also at the same time. हाँ मैं इधर पहले तो सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि बाय करो. ये ट्रेन मुंबई से निकल के अहमदाबाद पहुंच चुकी है सर. राइट ना सर. मैं ट्रेन को कहाँ पढ़ूंगा, यहाँ मुंबई से निकली है तो बोरीवली तक पकड़ लूंगा. जो चार्ट्स के ऊपर मुझे रिवर्सल दिख रहा है, कंप्लीटली कंसोलिडेशन इज देयर.
तो यहाँ तो मैं पकड़ूंगा ही नहीं, आई विल वेट कि वो थोड़ा और नीचे आए और मुझे बड़ौदा सूरत के आसपास मिले, देन आई विल पिक ओके नियर दिस लेवल। अभी इधर तो बाय करना बनता है। एक बात समझ लो सर, अगर आप इतने बड़े मूव के बाद तुरंत पिक करने की सोच रहे हो ना, तो 70 to 80% टाइम यू विल बी इन अ लॉस अगेन, ओके क्योंकि ज्यादातर मूव हो चुका है। सो ऑलवेज ट्रेन का इंजन शुरू हुआ, ट्रेन मुंबई से बोरेली पहुंच गई, देन पिक इट। ओके उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कहो। अभी देखो ये तो टारगेट हो गया सर, अगर मैं ये पिक गिनूं इट वुड बी द टारगेट, इट्स डन ऑलमोस्ट, कुछ बचा ही नहीं है सर। या देन आई विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट। और समझ लो मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक ट्रेन आएगी, दूसरी ट्रेन मिलेगी सर। या करेक्ट You are a positional trader, or if you are positional, otherwise one stock is enough for me for intraday trading। या ओके तो ऑलवेज कभी भी इसके ऊपर मत बाय करो। ये देखो ये हुआ सर, या तो नीचे आया वापस, मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी सर, ट्रेंड लाइन के ऊपर से सपोर्ट लिया सर। यहाँ बाय किया होता तो ये रिवॉर्ड मिल गया होता, या यहाँ बाय किया होता तो नीचे आ गया होगा, डर लगा होता, हम इधर निकल गए होते या स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि वापस अंदर आ गया चैनल के अंदर, है ना सर। हमने क्लोजिंग बाहर दे दिया, वापस बाय बन गया एंड बूम। करेक्ट व्हाट द लॉजिक सर? गॉट इट ओके एनी अदर क्वेश्चन? सुभाष सर, जैसे आपने बताया वैल्यू स्टॉक, यस तो इसका मतलब सीधा सा मतलब हो गया कि जैसे प्राइस नीचे आए तो हम बाई करेंगे, और जैसे रिलायंस पावर सुजलोन में हुआ था, बाई करने के बाद प्राइस नीचे ही नीचे आ रहा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें? they are not value stock. There is no fundamental at Yes, sir. all in Reliance Power and Suzlon. आपको लेना है, you can risk 2 to 3% of the portfolio. देखो सर, I recommended few penny stock 6 month back. Idea, right sir? जब 3 रुपया 4 रुपया Yes, sir. था, मुझे लग रहा था कि somehow कुछ होगा पॉजिटिव, तो मैंने वो रिकमेंड किया था, बट देयर वाज अ स्टार मार्क वाज देयर कि कैरी लेस क्वांटिटी लेस देन 2 or 5% ऑफ द पोर्टफोलियो। इट्स अ कंप्लीटली कैलकुलेटिव रिस्क। अगर मेरे पोर्टफोलियो में आइडिया 2% ही है तो इट्स अ सेफ बेट ना सर। 2% मुझे रिलायंस भी कवर करके दे देगा, मींस आइडिया 0 भी हो Yes, गया sir. मेरे पोर्टफोलियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। इट्स कंप्लीटली कैलकुलेटिव रिस्क। अनदर आई टोल्ड यश बैंक जब 9 रुपया 10 रुपया आया था, मैंने बोला जस्ट ऐड लेस देन 2% ऑफ द पोर्टफोलियो। अभी भी मैंने बोला एफपीओ में 12 रुपए के ऊपर भाई बाय करो, गो फॉर एफपीओ। आई एम लुकिंग दिस अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑल द मैनेजमेंट इज बीइंग चेंज ऑलरेडी। जितना इरोजन होना था हो चुका है सर। अभी आई एम लुकिंग पॉजिटिव स्टिल। 12 रुपए के एफपीओ में मैं बोला 17 रुपए तक गया। मैं जिन्होंने ट्रेडिंग करनी थी दे ऑलरेडी बुक गुड 5 रुपीज प्रॉफिट, राइट सर। अभी वापस 12-13 के ऊपर मिल रहा है। एंड आई बॉट यस बैंक फॉर नॉट फॉर मी, फॉर माय सन। व्हाट द लॉजिक सर? राइट सर। इट्स अ कैलकुलेटिव रिस्क। 2 या 5% डजंट हार्म योर पोर्टफोलियो, डजंट erode your portfolio, because 2 या 5% हमको HDFC रिलायंस कवर करके दे देगा। बिल्कुल राइट सर, राइट राइट सर। वो 0 भी हो जाए तो भी अपने पोर्टफोलियो में फर्क नहीं पड़ेगा सर। राइट राइट सर, राइट। एनी अदर क्वेश्चन सर? नो सर। थैंक यू सतिंदर जी। सो एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बोलिए सर। सर थोड़ा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं आपका वो आंसर सुन नहीं पाया। वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टमेंट मतलब जो स्टॉक में अभी भी वैल्यू है और सस्ते में मिल रहा है, राइट सर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ब्लू डार्ट, अभी भी मुझे सस्ता लग रहा है बट वेट फॉर रिट्रेसमेंट। और ग्रोथ स्टॉक मतलब जो ऑलरेडी भाग रहा है, ग्रोइंग स्टेज में है, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर। एंड सिंपल एग्जांपल मैंने दिया थोड़ी देर पहले, अगर वैल्यू स्टॉक को मैं करूं तो बजाज कंज्यूमर एज ऑफ नाउ इज अ वैल्यू स्टॉक, मुझे बहुत सस्ते में मिल रहा है। एंड इट्स वन ऑफ द लीडिंग, वन ऑफ द मेजर having the hair oil business in the market, almost 90% बजाज कंज्यूमर। तो ये मेरे लिए वैल्यू स्टॉक है, बट इसमें मुझे पेशेंस भी चाहिए।
इधर मैं पेशेंस रखूंगा तो आई एम लुकिंग फॉर अ बिग हाई लेवल्स। देखो उसका हाई कितना था सर, 537 और अभी है 181, ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस। तो ये मेरे लिए वैल्यू स्टॉक है। ब्लू डर्ट मेरे लिए वैल्यू स्टॉक है। ब्लू डर्ट जो मुझे 8,000 का था वो अभी मुझे 3,000 में मिल रहा है सर। एंड इट्स अ फाइनेस्ट एफएमसी, फाइनेस्ट एमएनसी स्टॉक सर। ब्लू डर्ट के जो ट्रांसपोर्टेशन प्लेन्स है ना वो भी उनके खुद के है। दे आर कैरिंग ओन एरोप्लेन्स फॉर डूइंग द इंटरनेशनल कार्गो एंड कुरियर सर्विसेज। तो दिस इज अ ब्लू डर्ट, मुझे वैल्यू स्टॉक देता है। अगर मैं ग्रोथ स्टॉक देखूं तो ग्रोथ स्टॉक लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, दिस आर अ ग्रोथ स्टॉक जो कोरोना के टाइम पर भी इतने नहीं गिरे। राइट सर, इट्स अ पीक टाइम, इट्स अ कोरोना। देखो सर इधर, लेट मी गो फॉर डे, यस दिस इज अ कोरोना फॉल, और उसके टाइम पर भी वो इतने नहीं गए। दिस इज अ ग्रोथ स्टॉक फॉर मी। एशियन पेंट्स, इट्स अ ग्रोथ स्टॉक फॉर मी, इट्स ट्रेंडिंग एट 52 वीक हाई। ये भागते हुए घोड़े है सर, जो हमेशा भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। और बजाज कंज्यूमर भागता हुआ घोड़ा नहीं है, बट अगर आपके पास पेशेंस है तो फ्यूचर में मल्टीप्लाइड रिटर्न दे सकता है। गॉट इट सर? Yes, sir. Is a difference between growth stock and value stock. Got it? Sir, which kind of stock should we hold in portfolio more, growth or value? Both. Depends on your horizon, sir. अभी देखो सर, मुझे वैल्यू लगी ब्लू डर्ट में, आई हैव एडेड। टेक्निकल भी मुझे सही लगा, आई हैव एडेड। और उसमें मुझे पेशेंस चाहिए, दोनों का होना चाहिए। आपको बहुत जल्दी है देन गो फॉर ग्रोथ स्टॉक, और आपको जल्दी नहीं है, यू आर लुकिंग फॉर अ नेक्स्ट जेन और अ लॉन्ग टर्म होराइजन, यार 5 to 10 years एड वैल्यू स्टॉक आल्सो, बिकॉज वहां मल्टी। देखो सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2000 से 2400 जाने में उसको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका बेस भी बढ़ गया है। बट जो वैल्यू स्टॉक है उसका बेस बहुत छोटा हो गया है। जस्ट वन स्पाइक इन गुड बिजनेस ओरिएंटेशन एंड ऑल ग्रोथ, वो इमीडिएटली स्पाइक हो जाएंगे, जो अभी ब्लू डर्ट स्पाइक हो रहा है। But that need good conviction in that stock and having good patience. Right sir? 3-4 रुपए के ऊपर मुझे आइडिया वैल्यू स्टॉक लग रहा था, बहुत टाइम सर वहां पड़ा रहा सर। यू कैन सी वो 6 रुपए तक गया था। तब कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया कि जब 6 रुपए से 3 रुपए पे आया था, इधर हियर आई हैव रिकमेंडेड नवंबर, राइट, जब उसने बुलिश एंगल्फिंग बनाया, then it went to the 7 rupees 8 rupees, और जब फॉल हुआ तब लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, जब नीचे आता है तो आप नहीं बोलते सर। बट इट्स ए इन्वेस्टमेंट लेस देन 2% ऑफ पोर्टफोलियो, क्या बोलना सर मुझे, ऑलरेडी अगेन रिवॉर्डेड, और अभी वापस कंसोलिडेशन करे, वापस बाउंस, अभी वापस रिवॉर्ड दे रहा है सर। तो इट्स अ वैल्यू स्टॉक, आई नीड पेशेंस टू होल्ड इट लॉन्गर। गॉट इट सर? Yes, sir. Same I am So- saying for Yes Bank also. So, sir, Honeywell Automation. Yes, it's a base stock, but don't expect to multiply, Okay, sir. क्योंकि already you can see, but it's ऐसा stock है ना सर, पोर्टफोलियो को जल्दी नीचे नहीं जाने देते। It's a one type of growth stock, हाँ। Okay, sir. अगर मुझे वैल्यू देखनी है ना तो see, हाँ, sir. I will show you the value stock. Bosch ऑटो डाउन हुआ सर, जब यहाँ था ना सर, Okay, sir. हाँ, sir. तब मारुति 10,000 था, है ना सर? Okay, sir. हाँ, sir. Bosch is an auto ancillary stock. Just I am doing the comparative. Einstein theory of the relativity. जब ऑटो का डाउनफॉल शुरू हुआ, बॉश का भी डाउनफॉल शुरू हुआ, ये 13,000 में मिल रहा है with a peak of what? 26,000, almost 50%. और 50%. So it's a value stock for me, sir. मैं हनीवेल में पैसा डालूंगा अगर मुझे जल्दी है, if I am looking for a good stock. Okay, sir. अगर मेरे पास पेशेंस है तो मैं इसमें पैसा डालूंगा, 13,000 वाला बॉश। Okay, sir. हाँ, sir. हाँ, sir. Got it, sir? Okay, sir. Got it, sir. हाँ। Thank you. और Thank you, समझो सर, आप स्पार्क प्लग, कोई भी व्हीकल का स्पार्क प्लग ओपन करके देखेंगे ना सर, हाँ, sir. हाँ, sir. हाँ, you will find only one logo, there is Bosch. Bosch.
I've seen. हाँ हाँ The हाँ. monopoly business of the spark plug और Oh, spark plug के बगैर engine start नहीं होता सर, कोई भी engine, whether it's awesome. a generator or whether it's any vehicle. Got it, Okay. sir? It's the value Okay, sir. stock and growth stock difference. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Any other confusion? हाँ बोलिए. हाँ. सुहास जी, आईटीसी के बारे में बेसिकली अभी बहुत डाउन हुआ है 171 तक, बट पीपल आर टेलिंग कि और डाउन होगा. व्हाट इज दिस थिंग? बट व्हेन आई सी द फाइनेंशियल्स, वो तो ठीक ही लग रहा है. it is giving continuously profit only. So what do you say about that ITC? ITC मैंने 2025 के पोर्टफोलियो के लिए सजेस्ट किया है सर. मींस इफ यू आर हैविंग, ये वन ऑफ टाइप ऑफ वैल्यू स्टॉक है सर, बराबर वैल्यू है पर मार्केट उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है. रीजन सो मेनी. रीजन नंबर 1, उसका टोबैको एक्सपोजर ज्यादा है स्टिल, राइट सर, एंड दे आर putting much effort to improve on FMCG business and IT business, hotel business, but still major component is a tobacco business, right? Yeah. And diversify basket है. There are so many business. सर पहले मार्केट में माना जाता था, इवन आई वाज बिलीविंग कि अगर मल्टी बास्केट स्टॉक है तो उसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है. बट अभी मार्केट में क्या हो गया है, ऐसा बिजनेस होना चाहिए भले कम हो बट फोकस्ड हो, देन इट विल रिवॉर्ड लाइक एनीथिंग. सो पॉइंट नंबर 1, टोबैको का एक्सपोजर ज्यादा है जो उसको ऊपर जाने नहीं देता. पॉइंट नंबर 2, मल्टी बास्केट है, इसके बहुत सारे बिजनेस है, आईटी, टोबैको, एफएमसीजी, होटल बिजनेस, पेपर बिजनेस, और कितने मुझे पता नहीं है सर, बहुत सारे बिजनेस है. सो देयर इज नॉट फोकस अप्रोच, दे आर गिविंग ग्रोथ इन टोबैको. सेकंड रीजन विच आई एम सीइंग, और वन ऑफ द सीनियर्स के साथ मैंने 2 दिन पहले डिस्कशन किया, उन्होंने मुझे एक एनालिसिस बताया विच इज कंप्लीटली माइंड बोगलिंग, मुझे भी कभी समझ में नहीं आया कि हाउ द सीनियर्स आर गेटिंग सच अ नॉलेज. उन्होंने बताया आईटीसी इज कैरिंग सम स्टेक बाय सम ब्रिटिश कंपनीज, राइट सर, और हमारे एलआईसी के पास भी बहुत अच्छा स्टेक है आईटीसी का. सो दे आर स्ट्रगलिंग इन दिस सेगमेंट. उनको मर्जर चाहिए, डी मर्जर, देयर आर सो मेनी इश्यूज आर देयर विद आईटीसी ऑन अ हायर कॉर्पोरेट लेवल्स. ब्रिटिश कोई कंपनी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट वो बंदा बहुत एक्सपीरियंस था, उसने मुझे बताया कि ब्रिटिश कंपनी में इसका स्टेक है एंड दे आल्सो वांट समथिंग वाज देयर. तो वो चीज, और दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर, वो उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा, राइट सर. ओके. हाँ, एंड एक बात बोलूं, दिस इज अ फाइनेस्ट ट्रेडिंग स्टॉक व्हेन डूइंग द ऑप्शन राइटिंग, राइट सर. ऑप्शन राइटिंग में इसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है, राइट सर, डेटा सेज द सेम. ओके. बट अगर आप इन्वेस्टर हो, इसको समझ लो आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए, देन गो अहेड. अच्छा. फंडामेंटली नथिंग रॉन्ग, कैश फ्लो देखो, प्रॉफिट देखो, सब देखो, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट सर. Correct. That is what I am seeing. But वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है. Even the 2020 results are good. But yeah. मैं बोल रहा हूँ ना सर, कई चीज हमारी समझ से परे है. That's a smart money. Smart money is not looking value in it. Simply there are so many issues, right? Yeah. Issue is not even a serious. But एक बात समझ लो सर, ये जिस दिन भागा किसी का नहीं रहेगा, because it's a value stock. Okay. राइट सर. जिस दिन कुछ भी अच्छा हुआ, कुछ भी अच्छा एफआईएस को दिखा, स्मार्ट मनी को दिखा, इट विल एप्रिशिएट लाइक एनीथिंग, क्योंकि जो स्प्रिंग दबती है ना, जितनी दबती है उतने जोरों से उछलती है. एग्जांपल इज रिलायंस इटसेल्फ. ब्लू डर्ट देख लो सर, 2000 से 3000 ऐसे ही चुटकी में आ गया सर. स्प्रिंग कैसे उछली ना सर, फिर आप सोचोगे रह गए, बिकॉज दैट्स आर अ वैल्यू स्टॉक, इट नीड पेशेंस, right sir? Yeah. Any other confusion, any other query sir? Suhas sir. हाँ बोलिए सर जी. Sir, can you help with 10 best value stocks and 10 best growth stocks? 10 देखो, 10 बेस्ट ग्रोथ स्टॉक. ओके, ग्रोथ स्टॉक में सिंपली दिखाऊंगा रिलायंस, एचडीएफसी, रिलायंस, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स, टीसीएस, टाइटन इज somehow the little value stock. रिलायंस, टीसीएस, अभी मुझे सब सही लग रहा है ना, वो दिखा रहा हूँ ऑन अ टेक्निकल लेवल से. रिलायंस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर,
सर HDFC बैंक बोला कि सिर्फ HDFC? Sir, if you go for HDFC, don't go for HDFC Bank because it's already included in HDFC, right, sir? Then go for another bank. HDFC दूसरे अच्छे स्टॉक और मुझे दिख रहा है ये ब्रिटानिया, then growth of Godrej Consumer. Yes, these are a 4 to 5 good growth stock. And value stock I am looking, जो already मैं बता चुका हूँ, Blue Dart, Bosch, Page Industry, Godrej Consumer. These are the good value stock. So simply growth stock देखना है, मैं top 10 blue chip stock देख लूँगा. They are the growth stock on a Nifty. Infosys, right sir? These are the growth stock. हाँ, मुझे इन दोनों के बीच में लग रहे हैं ना वैसे स्टॉक दिखाता हूँ जो वैल्यू स्टॉक भी नहीं है, ग्रोथ स्टॉक भी नहीं है, इन अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन जो मुझे अभी भी सस्ते लग रहे हैं एंड कंपैरेटिव सही लग रहे हैं. दैट्स आर द टाइटन, पीडीलाइट, टाटा केमिकल, जो दोनों के बीच में खड़े हैं. नेदर ग्रोथ स्टॉक नॉर अ वैल्यू स्टॉक, राइट? टाइटन, पीडीलाइट, टाटा केमिकल जो अभी भी इन बिटवीन है, जो चले नहीं है या नॉट उतने नहीं चले जितना उनका पोटेंशियल है. बाटा इंडिया, बाटा, यस, अनदर 50-50. सर मेरे पास बाटा पड़े हुए हैं, राइट सर, एंड इट विल बाउंस लाइक एंटी आफ्टर, जब भी ओपन हो जाए. इट्स अ फाइनेस्ट स्टॉक, राइट सर. बाटा जैसा जूता नहीं, टाटा जैसा लोहा नहीं, राइट सर. ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने. तो बाटा is a good Relaxo is also good from same sector, right sir? हाँ बोलिए सर. सुभाष सर. हाँ बोलिए सर जी. सर IPO मझगांव पे आपका क्या व्यू है, लिस्टिंग गेन या फिर होल्ड फॉर लॉन्ग? सर यू कैन डू बोथ. एक बात समझ लो सर, अगर आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिलता है ना तो बी अपॉर्चुनिस्टिक, बुक करो सर. हाँ सर. क्योंकि आपको 5 या 10 दिन में 20-25% मिल जाता है, कई बार डबल हो जाता है. ऑलवेज हैबिट टू बुक इट सर. सर मनी जो है ना, पैसा जो है ना, इट्स वन ऑफ द टाइम कंपेरेटिव विद द टाइम. अगर हम देखते हैं कि भाई 100 रुपया हमने कहीं FD में लगाया तो 1 साल में हमको 6% या 60% मिलेगा. सो कंपेरेटिव टाइम ना, 1 साल में मुझे 100 रुपये का 106 रुपया मिल रहा है विथ 6% इंटरेस्ट रेट. सिमिलरली मार्केट में भी अगर मुझे 15 दिन में कैमकॉन में पैसा डबल हो रहा है, एंड आई शुड बुक इट सर. बराबर है सर. टाइम होराइजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट. कई बार सर मैं इंटरनेट ट्रेडिंग करता हूँ सर, बराबर है. स्टूडेंट बोलते सर ये बहुत ऊपर जाएगा, बट कंपेरेटिव अगर मुझे 15 मिनट में निफ्टी में 50 पॉइंट मिल रहे हैं, आई लव टू बुक इट बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ द टाइम. 15 मिनट में मुझे 50 पॉइंट मिल रहा है, शायद हो सकता है वहां से ऊपर जाए, पर चांसेस है कि वो वापस नीचे जाए, मुझे वापस मूव दे. दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग द मार्केट, वेदर आई एम अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, राइट सर? हेलो, किसने सवाल पूछा था सर? बट द पॉइंट, इफ यू फोकस ऑन प्रोसेस लंबे समय तक जाओ. इफ यू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग एज अ टिप, रुक जाओगे सर. फोकस ऑन द प्रोसेस, व्हाट आई एम सीइंग इन वैल्यू स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक. पर अगर आप सोचोगे कि भाई सर ने बोला कि भाई ब्रिटानिया बाय करना है, तो इट विल नॉट हैव यू, इट विल नॉट रिवॉर्ड, बिकॉज आपका खुद का कन्विक्शन होना चाहिए कि भाई चलो ब्रिटेन इज अ गुड स्टॉक, देन ओनली यू कैन होल्ड. अदरवाइज आपकी पेशेंस जवाब दे देगी, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, लॉस में निकल जाओगे और फिर स्टॉक ऊपर भाग जाएगा सर. ओन कन्विक्शन मैटर्स अ लॉट. आप वही बाइक चलाते हो जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल हो, वो कभी नहीं चलाते जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो. गॉट इट? हुआ सर. हाँ बोलिए हेमंत जी. सर वैल्यू स्टॉक्स काफी टाइम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो वैल्यू स्टॉक से आगे जाके बढ़ेंगे, लेकिन वो टुवर्ड्स कचरा होते जाते हैं, तो उसके लिए कैसे फिल्टर करें? सर वैल्यू, अगर बहुत सारी चीजें हैं फंडामेंटल में सर. फंडामेंटल में इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब्जेक्ट. हाँ फंडामेंटल,
हम एक दो चीजों के पर रिलाई नहीं रख सकते. देयर आर सो मेनी थिंग, दैट्स व्हाई टेक्निकल वाज इन्वेंटेड. अगर फंडामेंटल देखना है तो बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं, बट सम पॉइंट्स आई एम गोइंग टू हाईलाइट टू यू. व्हाट कैन बी सीन व्हाइल चूजिंग सच अ वैल्यू स्टॉक. स्क्रीनर करके एक साइट है, अरे इनका तो लॉगिन, स्क्रीनर करके एक साइट है, वहाँ हम स्टॉक स्कैन कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं. देखिए सर स्क्रीन है, यहाँ ऑलरेडी स्क्रीन बने हुए, बुल कार्टेल, ग्रोथ स्टॉक, इसमें वैल्यू स्टॉक भी होंगे. ये देखिए वैल्यू स्टॉक है ना, तो वहां उसके हिसाब से स्टॉक आ जाते. दिस ऑल आर द वैल्यू स्टॉक जो अभी भी अकॉर्डिंग टू पैरामीटर सस्ते लग रहे हैं. उसमें टीसीएस भी है, नेस्ले भी है, एबॉट है, पीडीलाइट है, टाटा इलेक्सी है. राइट सर. सिमिलरली अनदर स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो ग्रोथ स्टॉक, तो वहां देखिए बहुत सारे ग्रोथ स्टॉक भी है जो ऑलरेडी भाग रहे हैं. तो दीज आर, यू कैन स्क्रीन द स्टॉक, और इसमें आप अपना स्क्रीन भी बना सकते हो. अभी देखो व्हाट आई एम सीइंग मच मोर व्हाइल डूइंग एनी स्टॉक. आप बोले सर किसी और स्टॉक का नाम बोलिए जिसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है, वेदर इट्स अ गुड और बैड. हेमंत जी कोई एक स्टॉक बताइए. सर एक मुझे अच्छा लगा था यस बैंक, लेकिन मुझे लगा वो वैल्यू था लेकिन टुवर्ड्स कचरा होता है क्या. दैट इज व्हाई आई आस्क्ड द क्वेश्चन. बट एक बात समझ लो, कुछ चीजें मैं अभी बोला, कुछ चीजें हमारे भी रीच में नहीं है सर. दैट्स व्हाई वी आर कैरिंग पोर्टफोलियो. इसमें 10-15 स्टॉक होते हैं. राइट सर. क्योंकि मैं ये सोच रहा था यस बैंक में मोट है, क्योंकि इट इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, टॉप 3, 4, 5 के रैंकिंग में आता है, अच्छा बैंक है, लेकिन वी नेवर न्यू के अंदर क्या चल रहा है. हाँ, बट कुछ चीजें हमारे ऊपर भी नहीं है ना सर, हमको ही पता नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर कैरिंग पोर्टफोलियो. सर आपने सोचा होगा यस बैंक, चलो पोर्टफोलियो में आपका 400 रुपए का 13 रुपया होगा, बराबर है सर. राइट. बट कोई स्टॉक ऐसे भी होंगे ना जो 2-3 गुना हो गए हो सर. हाँ, तो दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, कि हमको हमारे सब अंडे एक बास्केट में नहीं रखने. और यस बैंक जैसी चीजें हो गई. आई ऑल्सो फेस द सेम इश्यू विद वक्रांत जी. वक्रांत जी मेरे खुद के पोर्टफोलियो में था जो अभी पेनी हो गया है सर. बराबर है. व्हाट द लॉजिक सर. यस यस. तो सर यही जानना चाहता हूँ कि ये बॉर्डर किधर डालेंगे कि कचरा स्टॉक होने जा रहा है ये, कि ये वाकई में वैल्यू स्टॉक है, ये बाइफरकेशन कैसे करेंगे. देखो सर उसके पहले तो हमको पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे. अभी देखो यस बैंक तो ऑलरेडी आपको पता है कचरा हो गया, बराबर है सर. अभी वैल्यू स्टॉक है मेरे लिए. आप वो फर्स्ट स्टॉक बोलिए जिसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, वेदर इट्स अ गुड और बैड. बोलिए कोई स्टॉक का नाम सर. डाबर इंडिया. डीसीबी बैंक. डीसीबी बैंक. You love to work in a bank, ना. डीसीबी बैंक. ओके. देखो डीसीबी बैंक का मैंने पूरा ओपन किया है इन स्क्रीनर. राइट. उसकी करंट वैल्यू है 79. 52 हाई कितना है सर. 204 और 58 का लो है. मीन्स 58 से 79 गया. मीन्स इतना भागा नहीं है, बिकॉज बैंकिंग ही नहीं भागी थी. कहां से भागा. बुक वैल्यू ज्यादा है सर इसका. राइट. पॉजिटिव पॉइंट. यस. पी कम है. राइट सर. तो ऑलरेडी कम है. नेट प्रॉफिट इज गुड. ईपीएस इज गुड. कितना ईपीएस है सर. 10.85. मीन्स 79 रुपीज के इन्वेस्टमेंट के सामने वो 10 रुपया कमा रहे हैं. इट्स अ गुड ना. हाँ, नेट कितनी है. बहुत ज्यादा है, बट वो तो होगी बिकॉज इट्स बैंकिंग स्टॉक. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, मोर देन 1. प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है ना सर. इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है सर. पेट्रोस्की स्कोर 4 इज गुड. ग्राम नंबर गुड. अल्टमैन जेड स्कोर यस दिस वन. राइट सर. द रिस्की पॉइंट. पीजी रेशियो, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, प्रॉफिट ग्रोथ, दिस अ प्लस पॉइंट. दिस आल्सो प्लस पॉइंट. 5 साल तक 20% का ग्रोथ है. दिस अ प्लस पॉइंट. बट प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है सर पजा मुझे. ये कहाँ गया. प्रमोटर होल्डिंग. हाँ, प्रमोटर होल्डिंग. राइट सर. बट स्टिल इट्स अ बैंकिंग, दो आई एम नॉट लुकिंग दिस थिंग वेरी एग्रेसिव. बैंकिंग एज पर आरबीआई प्रमोटर होल्डिंग बताया.
बट दीज आर वेरी पॉजिटिव पॉइंट्स। तो मेरे हिसाब से डीसीबी बैंक अभी वैल्यू स्टॉक है, वैल्यू स्टॉक, राइट सर? एनी अदर स्टॉक? सोमानी सिरेमिक्स। सोमानी सिरामिक्स, ओके, 200 रुपया प्राइस है। क्या लगता है, बहुत अच्छा मूव दिया ना सर? यस, फ्रॉम 76 थी इन स्पाइट ऑफ कोरोना 200 रुपए के ऊपर पहुंच गया। बुक वैल्यू इज ऑल्सो गुड, राइट सर? यस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड थोड़ा कम है। सेल्स ग्रोथ इज इन माइनस, but it acceptable as of now because of this lockdown. Actual figure would become after 6 months. EPS minus है सर। डेट कितनी है सर? मार्केट कैप कितना है और डेट कितनी है? बहुत ज्यादा है ना सर। प्रमोटर होल्डिंग इज अ गुड पॉइंट। अल्टमैन जेड स्कोर नेगेटिव, सही नहीं है, थोड़ा रिस्की है सर। सर इंट्रिंसिक स्कोर, इंट्रिंसिक वैल्यू तो ज्यादा है उसकी बहुत। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू इज वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसमें बहुत सारा इक्वेशन है सर। बट ये देखो सर, 5 साल में बहुत कम है, ये भी बहुत कम है ना सर। You will tell this is कचरा stock? No, this is not a कचरा stock. It may perform, but better options are there. इधर पकड़ो, कोई अच्छा स्टॉक मिलेगा सर। कजरिया को देखो सर, सेरा को देखो, है ना? सेम सेगमेंट, सेम पीयर्स, यू मे फाइंड गुड स्टॉक जिसमें पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे एज कंपेयर टू सोमानी। और सोमानी तो महंगा भी लग रहा है सर एज कंपेयर टू अदर्स। इसका पी कितना ज्यादा है सर? समझ लो ऊपर जितने नेगेटिव पॉइंट्स है वो अगर मुझे कजरिया में या सेरा में पॉजिटिव मिले देन आई कैन गो अहेड ना एज कंपेयर टू सोमानी विद द सेम सेक्टर। हेलो, राइट। व्हाट द लॉजिक सर? फोकस ऑन द प्रोसेस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कजरिया, चलो कजरिया ओपन करते हैं, कजरिया अच्छा है, मार्केट कैप इज ऑलमोस्ट 8,000 करोड़, करंट प्राइस, बुक वैल्यू सर ये 52 वीक हाई के ऊपर खड़ा है अभी। हाँ नियर 52। हाँ, ये देखो करंट प्राइस और 52 वीक हाई सेम है ऑलमोस्ट। नेट प्रॉफिट गुड, ये भी अच्छा है एज कंपेयर टू सोमानी, इट्स अ बेटर। हाँ राइट सर। तो दिस अ बेटर स्टॉक। और इसका डेट, मार्केट कैप क्या है? 8,000। डेट कितनी है सर? नेग्लिजिबल। सर इट्स अ डेट फ्री कंपनी, तो व्हाई शुड आई गो फॉर सोमानी, व्हाई शुड आई नॉट गो फॉर कजरिया? अगर मुझे डेट फ्री कंपनी मिल रही है, दिस माय फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रमोटर होल्डिंग गुड ना? राइट। तो दिस अ बेटर स्टॉक सर देन सोमानी। और पी भी कम है तो उससे तो सस्ता ही है। क्लियर सर? राइट सर। सर मार्केट इज ऑल अबाउट द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, किसके कंपेयर में कौन किस तरह काम कर रहा है। गॉट इट? यस सर। फॉरगेट सोमानी, फोकस ऑन कजरिया। ओके सर, वन मोर थिंग, जैसे आपने बोला डेट ज्यादा है इसका, ठीक है, हाँ। लेकिन रिलायंस का भी कुछ टाइम पहले डेट ज्यादा था, ठीक है, तो लेकिन अचानक दे वर्कड आउट दी स्ट्रेटेजी के डेट जीरो कर देंगे और देन दी स्टॉक मूव्ड ऑफ। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे डेट दिख रहा है लेकिन देयर मैनेजमेंट माइट हैव अ स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस दैट डेट। यस, दैट इज नॉट आल्सो बैड, डेट इज नॉट आल्सो बैड। अगर परफॉर्मेंस है तो डेट भी सही है, क्योंकि उनका जो डेट है उसका सही डायरेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। अभी सोमानी में डेट है बराबर है सर, बट परफॉर्मेंस कहाँ है सर? परफॉर्मेंस कहाँ है? आप पैसे तो ले रहे हो बट परफॉर्मेंस सही है ना सर? कोई बंदा पैसा डाल रहा है तो परफॉर्मेंस सही है, देन इट विल बी रिवॉर्डेड। अभी रिलायंस में ऑप्टिमिज्म क्यों बढ़ा सर? डेट जीरो हो गया। हाँ, डेट वो कर रहा है। अभी देखो सर, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी डेट फ्री हो रही है, इट्स अ गुड ना? हाँ हाँ, और जियो इज परफॉर्मिंग एंड देयर इज सो मेनी बिजनेस दे आर एक्वायरिंग, तो इट्स अ वेरी ऑप्टिमिज्म वाज इज देयर। एंड आई पर्सनली, मैंने तो बहुत सारे ऐड करवाए 800,000 के ऊपर एंड दे ऑल डबल्ड। तो स्टिल आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद रिलायंस। जिसका जो व्यू नेगेटिव है पॉजिटिव, बट आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर नेक्स्ट 5 years। अगर मुझे कोई एक ही स्टॉक बोलेगा देन आई विल गो फॉर रिलायंस ओनली। ओके सर।
यस सर. सुहास सर, हाँ बोलिए सर जी. स्टॉक शिप वर्सेस म्यूचुअल फंड शिप. बोथ. आई एम डूइंग बोथ. ओके. हाँ आई एम डूइंग बोथ 50-50. अभी सर मैं तो पूरे दिन मार्केट में पड़ा रहता हूँ सर, फिर भी मैं म्यूचुअल फंड क्यों कहता हूँ? म्यूचुअल फंड गिव मी डिसिप्लिन. सर डेटा कहते हैं आप लमसम बाइंग करोगे, एसआईपी करोगे, तो जो एसआईपी का ग्राफ है ना वो ऊपर रहता है. बिकॉज एवरी टाइम वी आर ट्राइंग टू कैच द बॉटम एंड नो वन कैच द बॉटम. तो फर्क होता है, जो एसआईपी वाला होता है, जो कछुआ होता है वो भी रैबिट को सरपास कर जाता है. तो फोकस ऑन एसआईपी, राइट सर. और अगर लमसम करना हो तो टेक एडवांटेज लाइक कोरोना और 2008, देन गो फॉर लमसम, राइट. एसआईपी बेस्ड. सर मैं तो स्टॉक भी दो तीन स्टॉक्स करके खरीदता हूँ. हाँ करिए, दो तीन करिए. एंड डोंट पुट ऑल द मनी एट अ टाइम. मार्केट इज वेरी डायनेमिक. 11,400 भी देगा, 10,500 भी देगा, तो ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द बॉटम इफ यू आर अ लॉन्ग. राइट सर. थैंक यू सर. एनी अदर कंफ्यूजन? सर वन मोर सर, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ बोलिए. अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बाय दिख रहा है और छोटे टाइम फ्रेम पे सेल दिख रहा है तो क्या करना है? सर बड़ा टाइम फ्रेम बड़े होराइजन के लिए होता है, छोटा टाइम फ्रेम और छोटे होराइजन के लिए होता है. अगर मुझे आईटी अभी कोई स्टॉक बोलिए तो मैं सर उसमें एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि व्हाट्स योर व्यू. जैसे इन्फोसिस. इन्फोसिस, ओके. इन्फी, ओके. स्टैंडिंग नियर 52 वीक हाई सर, मींस बुल है अभी. राइट. हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बुल है, बराबर है. वीकली के ऊपर जाऊंगा वहां भी बुल है, बराबर है. मंथली के ऊपर जाऊंगा तो वहां भी बुल, बट वीकली के ऊपर ओवरबॉट है ना सर थोड़ा. राइट. तो वीकली यानी मुझे ज्यादा पकड़ के रखना है तो मुझे वीकली के ऊपर थोड़ा रिट्रेसमेंट देखना पड़ेगा. बट डेली में आई कैन गो फॉर अ फ्यू पॉइंट्स और इन अ 60 मिनट I can trade also with this retracement. बराबर है सर. तो मैं 60 मिनट के ऊपर देखूंगा तो मेरा होराइजन भी कम होगा टू होल्ड इट. अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखूंगा तो मेरा होराइजन भी बड़ा बन जाएगा. जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा होराइजन फॉर टारगेट एंट्री एंड स्टॉप लॉस. अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, देन फोकस ऑन डेली एंड वीकली मोड. गॉट इट सर? यस सर. यस सर. थैंक यू सर. क्योंकि मैं इंट्राडे काम करता हूं तो मैं 5 मिनट के ऊपर काम करता हूं सर. तो मेरा होल्डिंग टाइम कितना होगा? 30 मिनट 1 आवर सर. राइट. लेकिन अगर आप डेली पे काम करो आपका होल्डिंग टाइम कितना होगा? मंथ, ईयर्स. राइट. तो फोकस ऑन हायर टाइम फ्रेम इफ यू आर इन्वेस्टर. ओके सर. थैंक यू सर. यस. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? आईडीएफसी फर्स्ट का थोड़ा सा ये करेंगे. आईडीएफसी फर्स्ट सर आई रिकमेंडेड ऑन 17 रुपीज. जब कोरोना था मैंने बोला भाई बाय करो, इट्स वन ऑफ द वैल्यू स्टॉक. ओके. सो और अभी भी बोल रहा हूँ जब बाय तब बाय करो. आई एम लुकिंग दिस वन ऑफ द वैल्यू स्टॉक इन बैंकिंग, राइट सर. इट्स अ वैल्यू स्टॉक. वो 83 का मुझे 30 मिल रहा है. इट्स अ गुड बैंक. बोलते हैं ना सर, जो बच्चा अभी छोटा बच्चा है सर, इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग. बराबर है. ओके. ओके. तो इट्स वन ऑफ द वैल्यू स्टॉक. और बैंकिंग अभी नहीं चल रहा वो हकीकत है सर, लेकिन इकोनॉमी भागती है तो सबसे पहले बैंकिंग भागती है, वो भी हकीकत है. तो इट्स अ वैल्यू स्टॉक. जब ये डबल बॉटम बना ना, इट्स अ डबल बॉटम ना सर. आई रिकमेंडेड हियर. अभी मुझे क्या पता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं पता था ना सर मुझे. बट टेक्निकल क्या बोलता है? डबल बॉटम इज अ बुलिश पैटर्न ना सर. तो यहाँ मुझे एक्यूमुलेशन करना चाहिए. तो CID does I know market was going to blast like anything? No, I don't know. I just follow my system. A double bottom is a good for accumulation. Thank you. Any other confusion, sir? Sir, I have a question. है ना, अभी कोरोना है ना. Subhash sir, if promoter is buying. Yes, बोले. One by one. Relax, I am here.
सर जैसे प्रमोटर किसी स्टेक बाई कर रहा है कंपनी के अंदर, तो हम प्रमोटर किस प्राइस पे बाई कर रहा है वो कैसे पता करेंगे, कहाँ से पता कर सकते हैं? नो आइडिया सर, नो आइडिया सर। वो क्या जान के क्या करना है, प्रमोटर होल्डिंग इज इम्पोर्टेंट सर। और कई बार बहुत सारे इश्यू होते हैं या इनसाइडर ट्रेडिंग और वो सब, that's not our lookout, it's a lookout of the SEBI. Just focus on chart and fundamentals. Promoter buy कर रहा है, it's a good sign. बराबर है, जनरली हर बार ऐसा नहीं होता। प्रमोटर कई बार बाई करेगा, फिर धड़ाम से सेल करके निकल जाएगा, है ना सर। तो इंटीग्रिटी ऑफ द प्रमोटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो गो फॉर सिंपली, एक बात बोलूं सर, कई लोगों को ज्यादा वॉरेन बफेट मत बनिए सर, है ना। यस सर। हाँ, अगर मुझे अभी कोई अच्छा ब्लू चिप सस्ते में मिल रहा है, जस्ट फोकस ऑन इट। और मैंने कई नाम दे दिए ब्लू चिप एज द चीपेस्ट, लाइक ब्लू डर्ट, पॉस, वो मुझे सस्ते लगे तो फोकस ऑन इट सर, बराबर है। ओके सर। हाँ वो सर है ना, मैं क्वेश्चन है ना, वो अभी कोरोना है ना, वो टूरिज्म सेक्टर है ना अभी थोड़ा खराब में है ना, वो इंडियन होटल ऐसा यस, यू कैन फोकस, बट इट्स ऑलरेडी गुड मूव हाँ इन ऑल द होटल्स स्टॉक, बराबर है सर। एक है EIH है, दूसरा कौन सा है सर, मैं भूल गया, इंडियन होटल। हाँ जी सर, गुड। और सर डेटा कहता है जब भी ऐसा आता है ना कोरोना से, तब उसका मूव बहुत अच्छा होता है। तो यू कैन एक्यूमुलेट इन अ स्मॉल हाँ। स्टिल आई एम नॉट convinced with the business model of the hotels. It's one of the very, I am not looking much optimistic for long term. You can do for some gain, right? Hotel business, but carry small amount हाँ, don't big amount, छोटा 4-5% रख सकते हैं। और अगर सही में पेंडेमिक का एडवांटेज लेना हो तो गो फॉर अ बिजनेस मॉडल लाइक दिस PVR। गॉट इट सर? सर जब भी मैं सर 1000 के आसपास आता है मैं एक्यूमुलेट करता हूँ सिंस लास्ट 6 months एंड आई एक्सेलेंट गेटिंग 20-30% है। देखो अभी भी मैंने ऑलमोस्ट यहाँ जब बनाया ना, इट्स अ ट्वीजर बॉटम, जिनको पता है प्राइस का, इट्स अ ट्वीजर बॉटम, आई एक्यूमुलेटेड। तो एज ऑफ नाउ आई एम इन अ 20% राइज। गॉट द लॉजिक सर? और जब भी इकोनॉमी क्लियर होगी तो PVR वुड बी बेनिफिटेड, क्योंकि बिजनेस अभी देखो इनका मेजर बिजनेस इज अ मूवी तो है ही सर, बट उनका मेजर प्रॉफिट आता है फ्रॉम कैंटीन बिजनेस ऑफ द फूड, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट सर? So these are a good value stock for me. बोलते हैं ना सर कोरोना स्टॉक, तो कोरोना स्टॉक में ये आता है मेरे PVR। दूसरा एक था, एक भी है ना, हाँ बोलिए, दूसरा एक था जुबिलेंट फूड, बट ही इज ऑलरेडी गेटिंग एडवांटेज बिकॉज ऑफ द पार्सल सर्विस इन ऑल दिस थिंग, है ना सर? देखिए दिस ऑल थैंक्स टू हिज सर्विस ड्यूरिंग कोरोना। 52-week हाई पे है सर, thanks to its business model, successful business model of home delivery. Got it sir? ओ सर, हाँ यस सर। हाँ बोलिए सर। सर मैं टेस्ट किया ना कोलगेट पामोलिव, जिसका लिवर का है अच्छा है ना वो। हाँ, it's a good stock, you can hold, don't worry sir। देखो it's already consolidating साइडवे है पूरा, है ना? और साइडवे पूरा है ना, देखो सर, सर यहाँ कोरोना था सर, इससे कोरोना ना अप्रैल में, हाँ अप्रैल में कोरोना है ना, ये तो गिरा ही नहीं है, वो कंसोलिडेशन में है आपका ऊपर है ना। हाँ तो वो तो गिरा ही, ये तो गिरा ही नहीं सर इतना। इट्स अ ग्रोथ स्टॉक राइट सर? सर W पैटर्न बना मैं अभी टेस्ट किया ना, मैं इंट्राडे में 3-4 बार प्रॉफिट मिला ना उसमें, 2-3 BTS में है ना। ऐसा है तो मैं लॉन्ग टर्म का खरीद करने का सोचता है ना। इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म स्टॉक सर, यू कैन होल्ड लॉन्गर।
डब्ल्यू पैटर्न ही बन रहा है इसमें। हाँ अभी बॉटम भी बन रहा है, इट्स ऑलरेडी कंसोलिडेशन फॉर्म है ना। गॉट इट सर। कंसोलिडेशन मोड में वो सभी दिन है सर। और देखो वीकली के ऊपर देखेंगे तो Okay, पिक्चर thank और you, sir. क्लियर होगा सर। देखो कंप्लीटली साइडवे है। कौन सा स्टॉक है जी? कोलगेट पामोलिव सर। ओके थैंक्स। It's a good FMCG stock and it's carrying more than 50-60% of the toothpaste business, right sir? जैसे बजाज कंज्यूमर नंबर 1 in hair oil, these are number 1 in the toothpaste business. Colgate Palmolive. Colgate is equal to toothpaste. है ना सर? Any other question sir? Hello? Clear? Any question? मैं अभी भी है ना वो मैं थिंक सो ना वो फार्मास्यूटिकल्स है ना, फार्मास्यूटिकल्स अभी है ना ऊपर आया ना, वो थोड़ा बाद में वो नीचे जाएगा मैं थिंक सो। Sir, I am looking pharmaceutical yet as a valued stock. वही है ना वो मैं निफ्टी फार्मा का चार्ट ग्रैन्यूल ना मैनुअल 86 पे अभी मैं होल्ड करता हूँ। हाँ granules is a good, you can hold sir. Hello ग्रैन्यूल मैं होल्डिंग है 86%। हाँ from 86 तಗೊಳ್ರಿ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ವಿದೌಟ್ you can hold. Please choose peaceful place sir. I am muting all, जिसको भी बात करनी हो please unmute oneself and हाँ बोलिए सर। ग्रेन्यूल्स आपका 86 के ऊपर आपने लिया है, राइट सर? एक्सेलेंट सर, बहुत बढ़िया है सर। हरीश जी ओके सर। Finest peak by you sir, huh? From 86 to 386, excellent. Granules. Any other question from anyone? Hello? Deepak ji, there are many new faces. Deepak ji, Gopal, Mengani ji, Gautam ji, Harish ji, already we have discussed. Hemant ji, we already discussed. Sir, advanced enzymes. Advanced enzyme is a good stock, but carries small quantity. It's a one of the research based stock है, research based. उनकी ज्यादातर business is depend on their research, and research are always costliest. कई बार सालों निकल जाते, but it's a finest stock. Enzyme business ये बहुत अच्छा scope है इनमें से. Okay sir. And it's a one of type of pharma stock. Enzymes. Okay. Thank you. But SBI Life. Yes, SBI Life, sir. Insurance sector itself is a very good sector. Still, majority of the Indian part is unmapped with the insurance. So HDFC Life, SBI Life, I prove all are good business models to deal to be invested longer. Right, sir? SBI Life is a good. HDFC Life based. Hello? Yeah. Thank you. Any other question regarding technical, fundamental, portfolio building? Most welcome, sir. Hello, sir. Indigo after lockdown, it will be beneficial. But carry some portion because it's an airline business. You are going right के PVR की तरह हम Indigo को भी दे सकते हैं. But airline business is a very बोले complicated business, sir. बहुत complicated है, sir. International government की तरफ से crude oil business, crude का बहुत impact है. तो इसमें और एक ही स्टॉक मुझे अच्छा लगता है इन एविएशन सेक्टर डेज इंडिगो, राइट सर? तो रखो बट कम पोर्शन रखो, बराबर है सर? ओके सर। हाँ ओके थैंक। अगर मुझे पोर्शन ज्यादा रखना होगा तो मैं पीवीआर का रखूंगा, इंडिगो का कम रखूंगा सर। इफ आई एम लुकिंग फॉर अ लॉकडाउन। हाँ, इससे पीवीआर का बिजनेस सिंपल है, समझ में आता है। हाँ इसमें सर गवर्नमेंट के रेगुलेशन बहुत है, इंटरनेशनल नॉर्म्स होंगे अभी। हाँ इसमें तो रेगुलेशंस है। हाँ पीवीआर वन ऑफ द सर, और ऐसे स्टॉक पकड़ो जो मिडिल के क्लास के साथ ज्यादा रिलेटेड हो। इंडिगो इज नो मच मोर अबाउट द मिडिल क्लास, पीवीआर इज अ मच मोर अबाउट द मिडिल क्लास।
movie and all this, right, sir? Any other question, sir? हेलो हुआ सर? हाँ बोलिए सर. शुआ सर, कैंडल स्टिक से ज्यादा है ना लाइन चार्ट में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि उसमें मुझे वो W और M क्लियर कट दिखते हैं. हाँ, line chart is good to find the patterns. It's a line chart. It's a good to find the patterns. You are right. But thing is that if I am comfortable with the candle, I should work with the candle. If you are comfortable with line chart, you should focus on line chart. मैं स्प्लेंडर चलाता हूँ, आप चलाते हैं स्कूटी. Doesn't mean scooty is best or splendor is best. Right, sir? Technical analysis is more about own trading style, own behavior, own belief, own conviction. जहाँ वो सब चीजें होती है, go ahead because it's not a perfect science. जो साइंस आपके साथ अगर लाइन चार्ट सही काम कर रहा है, go ahead sir. Got it sir? Yes sir. सर जब ये W फॉर्म होने वाला रहता है और हुआ नहीं रहता है, तो जो W का जो मिडल पोर्शन रहता है उसको अगर ब्रीच करके ऊपर जाता है तो दैट इज अ बाय साइन, राइट? सर इट्स फ्रॉम डबल बॉटम इटसेल्फ इज अ बाय साइन. देखो सर चार्ट्स के ऊपर दिखा रहा हूं हाउ W पैटर्न इज फॉर्मिंग. लेकिन सारे W सेम लाइन पे नहीं रहते ना, कुछ स्लैंटिंग भी रहते हैं ऊपर. देखो सर ऐसे गया नीचे, ऊपर गया, फिर वापस गया और हियर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाया लाइक बुलिश एंगल्फिंग और व्हाटएवर, राइट सर? तो इसका पहला टारगेट आता है नेक लाइन बोलते हैं इसको. उसके ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा, देन आई एम लुकिंग फॉर अनदर लेवल एंड W कंप्लीटेड. गॉट इट सर? राइट सर. इसको नेक लाइन बोलते हैं. और यहाँ प्रॉफिट बुक होना चाहिए. मैं यहाँ तभी प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा जब मार्केट बहुत बुल हो या स्टॉक बहुत बुल हो. बराबर है सर? सर यहाँ से बाय करूंगा, यहाँ प्रॉफिट बुक करो, वापस बाय बनेगा, वापस बाय करो सर. थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट यहाँ होने ही वाला है सर. कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो कंटिन्यू भागता रहेगा. It may retrace here, it may give some signs here, some price action. Then you can execute again. What's this? Got it sir? W pattern. Right sir, right sir. Thank you sir. There are questions in a chat box. Okay, thank you. Any other questions, sir? Done. It's not even a 2 hours yet, huh? सर एक चीज पूछना था. हाँ बोलिए ना सर. सर गैप अप गैप डाउन जो है, मैंने कभी मेरे को ऑलमोस्ट 50-60% बार ट्रेड ठीक होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमेशा ना मेरे को लॉस हो जाता है, या फिर मेरे को मतलब एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट या मिलता ही नहीं है. You are an intraday trader, sir? सर इंट्राडे और पोजिशनल दोनों करता हूं सर मैं. तो गैप अप गैप डाउन में तो आपको इंट्राडे का एडवांटेज लेते होंगे सर, है ना? राइट सर? देखो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था निफ्टी, तो दिस अभी गैप डाउन का लेवल क्या है सर? ये है सर, बराबर है ना सर? जी सर. जैसे कंप्लीटली ब्लैकआउट, जहां काम नहीं हुआ है इसी को गैप बोलते हैं. दे आर वर्किंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. 11,350 और 11,300 आर अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. जस्ट एग्जीक्यूट. ऐसा मत सोचो कि इधर गैप है. जस्ट एग्जीक्यूट by thinking that they are support line and they are resistance lines. Got it sir? Okay sir. Sir smart money don't know यहाँ gap है. They are well disciplined. सर कभी होता है, ये भी होता है कि एक स्टॉक गैप अप से खुलने के बाद भी मैंने ये पोजिशनल में भी एक बार सर मेरे को बहुत पहले एक बार से लॉस हुआ था कि गैप अप अचानक से खुल गया, उसके बाद वो मेरे को वापस वो मार्केट आया नहीं और वो सडन हाई चले गया एकदम. हाँ तो होगा ना सर वैसा. That's why only 2% successful trader in the market. है ना सर? मार्केट में 100 में से 2 लोग ही सक्सेसफुल होते हैं. This is the reason. कई चीजें हमको समझ में नहीं आती सर, और अगर चीजें समझ में नहीं आती then don't trade. जब चीजें समझ में आए तभी काम करो. And it's not mandatory to work on every gap up and gap down. Right sir? अभी ये सर इतना गैप अप हुआ था, बराबर है सर? मैंने काम नहीं किया सर, सच बोल रहा हूँ. मैंने कोई एक ट्रेड लिया था, वो भी कोई 30-35 पॉइंट्स का था. मैंने स्क्रीनशॉट भी तुरंत डाल दिया था टेलीग्राम पे.
मैंने उसके बाद काम नहीं, बिकॉज आई एम नॉट कन्विंस, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। डजंट मीन सर आई डोंट नो कि मार्केट में क्या हो रहा है, बट मेरे हिसाब से मार्केट में अगर चीजें सही नहीं हो रही देन डोंट ट्रेड, एंड दैट इट कम्स विद द एक्सपीरियंस, एंड डोंट थिंक लाइक अ मशीन के सर गैप अप हुआ तो इसके ऊपर जाएगा, गैप फिल करेगा। नो, स्मार्ट मनी तो चाहता ही है कि हम ऐसा सोचे कि ऐसा है तो ऐसा होता है, वैसा है तो ऐसा होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता मार्केट में सर। इट्स ऑल अबाउट द ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट टू डील विद द मार्केट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स। सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब है, मूविंग एवरेज, फिबोनाची, बट नंबर 1 पॉइंट इज अ ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। मैं वही ट्रेड लूंगा जहां स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा है, then I need to be successful only 50 to 60% time, then I would be in a profit. Got it, sir? Yes, sir. Thank you, And sir. this is the reason मैंने थर्सडे को सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, वो भी 30-35 पॉइंट्स का था, because I am not convinced। मुझे लगा मार्केट कभी भी गिर जाएगा, कभी भी गिर जाएगा, बट वो सेल कॉल भी नहीं दे रहा सर, तो what should I do? I avoided. Got it, sir? और देखो सर, मैंने राह देखी तो इवनिंग में मुझे क्रूड का लोअर सर्किट का ट्रेड मिला, which was more convinced, I was more convinced with that trade and rewarded। तो मार्केट एक ट्रेन जाएगी दूसरी आएगी सर, but stick to own trading style, own psychology to deal with the market, not borrowed। बराबर है सर? Yes, sir. And gap up, gap down, make rules रखिए, they are working as a support line and resistance line। ये सर मेरा क्वेश्चन एक चीज था, मेरे को एक छोटा सिली क्वेश्चन थोड़ा सा है सर। नो प्रॉब्लम। कभी सर कभी ऐसा, ये मेरे साथ हुआ है पहले, मैं कभी ऐसा हुआ कि मैंने कोई पॉइंट पे, सपोज मैंने 100 पे लिया, मेरे को पोजिशनल लग रहा है कि ये 150 160 तक ऐसा है, लेकिन कभी कभी एकदम बहुत ज्यादा हैवी गैप अप से खुल जाता, उसके बाद वो मार्केट बहुत समय तक, अब सर पोजिशनल का भी मेरे पास भी एक लिमिट है, मेरा मनी जितना है, पैसा है, मैं उस हिसाब से पोजिशनल भी रखूंगा लंबा। अब एक समय का ऐसा आएगा कि वो उसका गैप अप बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है कि मेरे को फिर पोजिशनल मैं रख ही नहीं सकता उसके, उस स्टेज में क्या करूं सर? सर एक बात बोलूं सर, यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, बराबर सर। अभी समझ लो आपने यू आर कैरिंग पुट एज ऑफ नाउ, समझ लो आप अभी निफ्टी का पुट कैरी कर रहे हो जी सर, और मंडे को गैप डाउन खुलता है, तो आप क्या करोगे सर? आप बताओ सर मुझे, मंडे को चलो 100-125 पॉइंट गैप डाउन खुला, क्या करोगे सर आप? ऑन 950 व्हाट विल यू डू? अब वो मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर सकता हूँ। नहीं, आपने ऑलरेडी पुट कैरी कर रहे हो, मंडे को गैप डाउन खुलेगा, तो सबसे बड़ा मोमेंटम 9-15 को ही होगा सर। क्यों? पुट्स रन्स ऑन वॉलेटिलिटी, है ना, तो झटाक से मार्केट गिरेगा तो मैक्सिमम पुट का प्रीमियम वही होगा, इमीडिएटली बुक देयर सर। हाँ सर, वो तो बुक होगा, ठीक है ठीक है। आपका सिली क्वेश्चन क्या था सर? यही था ना? तो इमीडिएटली बुक, ऑलवेज टेक, अगर आप पोजिशनल कैरी कर रहे हो, गैप अप और गैप डाउन बड़ा मिल रहा है ना, ऑलवेज बुक इट, क्यों वो 50 नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, गैप फिल करेगा, देन यू विल गेट अनदर एडवांटेज एंड बी अपॉर्चुनिस्टिक। मार्केट किसी का सगा नहीं है, जो प्रॉफिट बुक करता रहता है ना, उसका सबसे बड़ा सगा है, लेकिन जो प्रॉफिट बुक नहीं करता उसका सबसे बड़ा दुश्मन है सर। और मेरा तो एक रूल है सर, लेस प्रॉफिट एक्सेप्टेड, लॉस नॉट एक्सेप्टेड सर। मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए, मेरा प्रॉफिट कम होगा चलेगा, कभी ना कभी बड़ा प्रॉफिट होगा, बट मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए, मेरा प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में नहीं जाना चाहिए। राइट सर? जी सर। ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन। ओके सर। और प्रीमियम नीचे आते ही है ना सर, गैप अप और गैप डाउन के बाद। लोग तो गैप अप और गैप डाउन के ऊपर कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ऑप्शन राइटिंग की, एंड दे एडवांटेज लाइक एनीथिंग। उनको पता है स्पाइक की वजह से प्रीमियम बहुत जोरों से बढ़ेगा और ड्रास्टिकली नीचे भी आएगा बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी। राइट? ठीक है सर। जी सर। आर यू कन्विंस्ड विद माय आंसर और स्टिल हैविंग कंफ्यूजन? है कंफ्यूजन है, मैं आपको देख नहीं पा रहा, आपके वर्डिंग के ऊपर से पता चला, स्टिल शेयरिंग सो मेनी कंफ्यूजन टू डील विद द मार्केट, है ना सर?
थोड़ा कंफ्यूजन है सर, थोड़ा सा हाँ तो confusion। टाइम लगेगा सर। कितना टाइम हुआ सर मार्केट में? सर मेरे को अभी हो गया ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया सर। हाँ, लगेगा टाइम सर। मैं 4 ईयर से प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उससे पहले मैं सर सिर्फ एक्चुअल में क्या था सर, मैं पहले सर जॉब में था बॉम्बे में। अभी क्या है, पहले मैं मेरे को एटलीस्ट उसके पहले मैं 2 साल अच्छे से ट्रेडिंग किया, लेकिन बीच में पापा का डेथ हो गया था और मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम, मेरे को कुछ एक्सटेंट हो गया था, तो मैं पूरा बेड रेस्ट में चले गया था 5-6 मंथ्स के लिए। तो इस वजह से भी ऑलमोस्ट मेरे को 1 से सवा साल का गैप हो गया। तो कुछ रिलैक्स हो जाओ पहले सर, रिलैक्स हो जाओ। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इस मार्केट के साथ काम करना इट्स अ रिलैक्स जॉब। हाँ, अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है ना, डोंट ट्रेड, डोंट इन्वेस्ट, डोंट टेक एनी डिसीजन। इट्स अ वेरी पीस ऑफ। अगर आपने नींद भी पूरी नहीं ली ना यस्टरडे को, डोंट ट्रेड इन मार्केट, क्योंकि आप गलती करोगे लेकिन उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा, दूसरे दिन पता चलेगा कि व्हाई आई हैव टेकन दैट सिली डिसीजन, क्योंकि आपका दिमाग थका हुआ था उस टाइम। बराबर है? तो दिस जॉब इज ऑलवेज कैरिंग द फ्रेश माइंड, फ्रेश। Got it, sir? यस सर। And break is also good. सर वो ब्रेक ने बहुत सर पूरा गैप, जितना पूरा पुराना मैंने एनआईएसएम के बहुत सारे मॉड्यूल्स भी क्लियर किए थे उस समय में, आज से इसके पहले 1-1.5 साल पहले, लेकिन पूरा गैप की वजह से पूरा चीज ऐसा लगा कि पूरा पूरा वैनिश हो गया है नहीं पूरा। सर कोई भी चीज सीखी हुई बेकार नहीं जाती। अगर आपने मगअप किया होगा तो बेकार जाएगा, लेकिन अगर आपने डाइजेस्ट किया हुआ है मार्केट के मूव को, वो अभी भी आपके अंदर होगा। जी सर। इट ओनली वेनिश्ड इफ यू मगअप द थिंग। कैसा होता है तो वैसा होता है, वैसा नहीं। मार्केट में इस तरह काम ही नहीं होता। मार्केट तो यही चाहता है कि आप सोचो। अभी पूरी दुनिया सब सोच रहे हैं मार्केट गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, है ना सर? यस सर। सर वही तो चाहता है स्मार्ट मनी का, उल्टा सोचो तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। बराबर है सर? तो आंखों के सामने जो है ना वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। मुझे आंखों के सामने, हाँ बोलिए। मैंने भी फिर से स्टार्ट कर दिया है, अभी 1-1.5 साल हो गया है। मैं थोड़ा धीरे धीरे फिर से वापस से लाइन पे आ रहा हूँ। तो कुछ कुछ चीजें क्या है, बहुत टाइम हो गया तो बीच में थोड़ा सा सब कंफ्यूजन हो गया था। काफी टाइम से मार्केट देखा ही था मैंने, तो कंफ्यूजन था, कुछ था, तो मैं फिर बस सीइंग द मार्केट वेदर यू आर ट्रेडिंग और नॉट, बट शाम को एक बार देख लिया करो कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों कैसे हुआ। जी व्हाट आर द इंडिकेटर मार्केट इज गिवन टू मी। सर मैंने 3 साल तक हर रोज F&O के 150 स्टॉक स्कैन किए, हर रोज। दिस माय प्रैक्टिस। जब मैं शाम को फ्री होता था, कमोडिटी ट्रेडिंग करता था, होल डे आई वाज बिजी विद माय बिजनेस एंड ऑल दिस थिंग। तो शाम को मैं 150 स्टॉक स्कैन करता था, उनकी इंटरडे मूव देखता था कि ये फटा तो क्यों फटा, उसने कल क्या किया था या सुबह क्या किया था। जी सर। तो वो आपका इनबिल्ट इंडिकेटर बन जाता है। आपकी आंखें बोलती है ये तो फटने वाला है। जी सर। That's not a gut feeling. Of course, it's a gut feeling, but based on your eyes, जो आपकी आंखें naked eye से देख चुकी है, and naked eye is the best indicator in the market. Yes sir. Got it, sir? And yes, sir. It's a very long process. Don't be hurry. ठीक है सर। इस मार्केट में जल्दी का काम शैतान का है। बहुत रिलैक्स हो जाओ। जाए तो जाने दो, भागे तो भागने दो, गिरे तो गिरने दो। मैं अपने लेवल के ऊपर बाय करूंगा बिकॉज आई एम कन्विंस्ड विद इट। ओके सर। कोई जल्दी नहीं, बैठे रहो, देखते रहो, जो होना हो जाने दो। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? सर आपका ये स्टॉक स्कैन बहुत हेल्प करता है रोज डेली, मैंने बहुत कुछ सीखने मिलता है। ये वाला आपका चीज सर, ये डेली जो आप स्टॉक स्कैन बोलते हैं ना, कि आप देखिए वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जो मैंने तो आपसे ट्रेनिंग ली है, तो उसके बाद मैं हर रोज वो स्कैन करता हूँ आप जैसा, तो मेरे से मैंने पूरा मेरा कुछ का डाउट ही क्लियर हो गया। बहुत सारा चीज मैं सोचने वाला था आपसे पूछूंगा, ये करते करते देखने से वो मूव पूरा क्लियर होते जा रहा है। ये बहुत अच्छा चीज आपने बोला था, ये मेरे को बोलना था। आप भले 150 स्टॉक स्कैन करो, बट
काम किस में कर पाओ, एक या दो में ही सर? एक या दो में, पर आपका जो मूव है ना वो 150 स्टॉक स्कैन करने से आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस, आपको काम करना है एक या दो में, एक या दो में, हाँ। पर आप 150 स्टॉक देखोगे तो आपकी आंखें उस चीज के देखने के लिए एडिक्टेड हो जाएंगी कि हाँ, यही हाँ, होता हाँ, है सर। हाँ 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 एकदम। डू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, नथिंग कम्स इजी। एनी अदर क्वेश्चन सर? No sir. Thank you sir. There are many students are also with me and I don't force them to join, they by choice, by their wish they are joining. कई लोगों को लगेगा कि भाई स्टूडेंट्स लोगों को ज्वाइन करवाया है, नहीं ऐसा नहीं है, दे आर बाय चॉइस ज्वाइनिंग टू डिस्कस। आपसे हर संडे हम लोग ज्वाइन, माने हम लोग का इच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है आपसे। अभी आपके सवाल ही हैं जो मुझे भी सिखाते हैं। अभी इतने सारे सवाल आए सुबह से, मुझे भी, मैंने भी देखो अभी लिखा हुआ है बाजू में कि मुझे अभी क्या फोकस करना है, कि कुछ सवाल मेरे लिए भी नए होते हैं ना सर। ओके सर, हाँ ये बोथ वे लर्निंग होता है, आपसे तरफ से, हम लोग की तरफ से भी। Any other question from anyone? Okay, done. It's almost 11. So Yes, any sir. other 2 hours question? completed. So can we close the day? Okay, sir. Can we close the session? Okay. Thank you, friends. Thank you for your valuable inputs. And thank you, sir. Thank you for helping, sir. Your query encourage me to move ahead. Very good session, sir. आपकी क्वेरी आपको तो एडवांटेज देगी, मुझे ज्यादा। A lot of sir, I said this is a very good session. Most welcome, madam. Another again from next month I will be back with you for the Very good same. session. But this time I haven't make any presentation because of some another priorities. Okay. But definitely I will. And this is the first session after so many months कि मैंने कोई presentation ही नहीं किया. Presentation दिमाग में था भी, but I don't have time to make it. And it's better I should focus on a question answer. Next month I think near Diwali we will meet again with some good presentation. Sir, and please try to do this type of classes once in a month. Sir, once in a month करता हूँ मैं, every month I am doing. हाँ, इस time late हुआ, इस time 1.5 महीना हो गया। बाकी generally end of the month student session and start of the month general session. Okay, sir. And this is the start of the month. Generally last Sunday student session रहता है and first Sunday general session रहता है, जो मैं अभी मैं कर रहा हूँ लाइव के साथ. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Again on Diwali. Okay. Have a great day. Have a great day. Enjoy. Thank you, friends. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.